इसकी जो थीम है ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन द हार्मोनी विथ नेचर, ये आयोजन महाविद्यालय के IQAC एवं विज्ञान परिषद की ओर से संचालित है। ये महाविद्यालय शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय से विगत 21 वर्षों से संबद्ध है। हमारे महाविद्यालय में 16 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स संचालित हैं। 2000 से अधिक छात्र इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। शोध केंद्र है। अनेक जो हमारे प्राध्यापक गण हैं वो शोध निर्देशक हैं। और हमारा क्लीन, ग्रीन, सस्टेनेबल ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। दिस एक्टिविटी मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सेमिनार में जुड़ करके आपने उस अंतरराष्ट्रीय अभियान में सहभागिता अपनी दर्ज की है जो पृथ्वी की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए संचालित है। और ये जो पर्यावरण का इतिहास अगर आप देखें तो जो पर्यावरण दिवस है ये 1973 यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्तमान 2022 में इसका दायित्व स्वीडन के द्वारा लिया गया है और इस वर्ष का जो थीम है बहुत ही सुंदर थीम उन्होंने दिया है, ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर। वी हैव बिलियंस ऑफ galaxies and every galaxy is having a billion and but in that galaxy there is only one earth. When we see our earth from the cosmos, it looks blue. A pale blue dot like a spot is there. You must have seen the images of earth received from the space, because this is the only planet which has chlorophyll or phycobilins on its surface, and they can absorb infrared light, so it appears blue from the space. In this 21st century, when this is the age of science and technology, man has a very close relation with the environment, at the part of the environment and in ecology. And we have learned during this process that we can make a lot of difference. We are very fortunate to have very eminent speakers of international depth on this issue. And Professor L.P. Pateriya, Shaheed NandKumar Patel is here, but due to some urgent academic commitment, he has just communicated that he is unable to join at the moment, but he has conveyed his best wishes for the success of this activity, and he has passed on a message that our future belongs to restoration of earth. We have to stop harming the earth. We have to learn how to live in harmony. So in the able guidance of the learned resource persons, we will learn that how we can participate in this growth movement and contribute at the individual level as well as at the societal level. So our future depends on our actions, on our policies, and our lifestyle management, everything. I think our speakers will be discussing every aspect of it, because we have very learned, excellent people of this field. We are honored to have
Honorable Professor V.P. He is a professor of geography and is in charge of the resource management from the Mizoram University, a thorough academician having large number of research papers, visited more than 36 countries all over the world, and actively contributing in this environmental awareness, education, disaster management, and sustainability issues. These are the experts, and he is a member of large number of societies also. Rishabh will be telling about his academic excellence. He has received large number of honors also, and we are also having Professor D.N.Pandey. He is from JNU. He is specialized in the disaster management issues. And we will be having Professor Tapas, and he's from Department of Geography, Raiganj University. He's a widely traveled person, a very great scholar, and he's excellently contributed in the area of sustainability and education, environmental education. He has also developed some education films also, and as well as he has also contributed towards the culture and the social behavior and the social mapping areas of. So he is having a very holistic approach towards this problem. So and Dr. Srimati Garima Tiwari, Professor of Forestry from Guru Ghasidas Central University, she will be with us, and she is committed to the cause of environment conservation and restoration process, and she is the vice chairman of the management committee of our college. And recently, with the inspiration of our chairman, we have developed a very good, we are in the process of developing a herbal garden as well as the greenery in the campus. So we have very learned campus, and all this activity is inspired by our chairman, Honorable Shri Veerendra Tiwari ji. He is the chairman of the Chaitanya Shikshan Samiti. Welcome you all. We extend you warm welcome, and we say that it is going to be really a very enlightening experience to learn this. This meeting is going, it is just like a wake-up call for all of us, because we are knowing that the condition is very alarming. Recently, we have faced COVID, and during this COVID, we have realized that how this environment was contaminated, and all over the world, we have seen this. So you see, the COVID is not over; it has transformed. We have to be very careful about the environment. So there are triple-fold challenges are there before us. One, if it is planetary emergency, then one emergency is all of us must be experiencing. It is the climate change, जलवायु परिवर्तन. आप देखिए हमारे जो मानवीय गतिविधियां हैं, पृथ्वी के ऊपर तापक्रम बढ़ रहा है. 2.5 और 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, और जिससे कि हमको क्लाइमेटिक चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं. और जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी इसमें भी परिवर्तन हो रहा है. 1 मिलियन से अधिक प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं. और तीसरा प्रकार का जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप हमारा जल, हमारी वायु, हमारी मिट्टी ये प्रदूषित हो रही है, जिसका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है. कुल मिलाकर के मानवीय गतिविधियां से, जिससे कि आज हम लोग इंफॉर्मेशन में जो सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे से गुजरने की बात कर रहे हैं, और 2 मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2021 somewhere there was an alarming call that we are using more resources than are being produced by Earth. So we are destroying, we are harming our Earth. Due to this harm, the balance is
getting disturbed. So our learned speakers will be enlightening us that how we can contribute for and restore our ecosystem. So this is the purpose. और किस प्रकार से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन कर सकते हैं, और क्योंकि सारे उत्तर प्रकृति के पास में है, नेचर में ना कहीं कोई एनर्जी क्राइसिस है, नेचर सेल्फ सस्टेनिंग है. सो वी हैव टू लर्न सस्टेनेबिलिटी अबाउट फ्रॉम दीज एक्सपर्ट्स, और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम एक सस्टेनेबल प्रोसेस अपनाएंगे. प्रकृति के नजदीक अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें अपना मार्गदर्शन लेना है. अपने जो हमारे विद्वान वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. और यदि आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो आप अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं. आप प्लीज प्रेजेंटेशन मोड में मत जाइएगा, सो दैट दे डोंट गेट डिस्टर्ब. और हम बहुत उत्सुक हैं अपने विद्वान वक्ताओं को सुनने के लिए. महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और अभिनंदन करता है. बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. N.Guria, sir, convener of this seminar, to address the meeting. Dr. Guria, sir. Thank you, Rishabh, sir. First of all, welcome to all professors, delegates, all students, research scholars, and all faculty members. Welcome to Chaitanya College, Pamgarh, Ghasidas, Chhattisgarh. Today's we are very happy. World Environment Day, 5 जून 2022. आप जानते हैं सभी, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 दिवसीय इस नेशनल सेमिनार में. आप सबको स्वागत करते हैं. और आज की इस नेशनल सेमिनार में जो थीम जो रखा गया है, ये सभी लोग सोशल मीडिया से लेके हर जगह में, कई लोग बोलते स्लोगन है, लेकिन ये स्लोगन आज एक बड़ी मुद्दा, बड़ी इशू और हमारे सामने है. हम इसको आगे बढ़ाना होगा. ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर. Organized by IQAC and Science Association, Chaitanya College, Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh, Chhattisgarh, affiliated to Shaheed NandKumar Patel University, Raigarh. आज के इस सेमिनार में चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ललित प्रकाश पठरिया सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़. सर नमस्कार. सर कुछ काम की वजह से जुड़ नहीं पाए. सर को स्वागत करते हैं. उसके साथ चेयरपर्सन मिस्टर वीरेंद्र तिवारी सर, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज पामगढ़, एंड प्रिंसिपल सर रिस्पेक्टेड डॉक्टर V.K. गुप्ता सर, प्रिंसिपल चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज पामगढ़. और नमस्कार सर. और आज के मुख्य वक्ता के रूप में एमिनेंट स्पीकर जो सुनने के लिए आप सभी इंतजार कर रहे हैं, हमारे बीच आज एमिनेंट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर V.P. सती सर, जियोग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी मिजोरम, यूनिवर्सिटी फॉर मिजोरम. सर नमस्कार. हमारे बीच प्रोफेसर D.N.Pandey सर, स्पेशल रिसर्च फॉर डिजास्टर रिसर्च जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली. सर नमस्कार. साथ ही डॉक्टर गरिमा तिवारी मैडम, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर. मैडम नमस्कार. साथ ही साथ बहुत एनर्जेटिक ऑलराउंडर and not only national and international, also all speaker and Professor Tapas from Raiganj University, Raiganj. सर नमस्कार. तो हमारे इस 2 दिवसीय सेमिनार में 4 तारीख जो एमिनेंट स्पीकर के सारी चीज बातें होगी, चर्चा होगी. उसके साथ 5 तारीख को जो है हम स्टूडेंट के लिए इवेंट्स रखा गया है, जिसमें इवेंट्स में पेंटिंग एंड स्लोगन कंपटीशन है, ऑनलाइन में भी होगी. सारी प्रतिभागी जो स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं. साथ ही के साथ आज के इस सेमिनार में जुड़ी सारी IQAC मेंबर्स, वेलकम टू ऑल. सारी टेक्निकल सपोर्ट प्रेस मीडिया कमिटी, साथ ही के साथ सारी ऑडियंस को मैं एक बार बोलना चाहूंगा, हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आज के इस सेमिनार में मुख्यतः में व्हाट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ लिविंग सस्टेनेबली. Very interesting. It is this for future generation, and which is also called in the Earth Harmony Living. And also findings आज के सेमिनार में जो बातचीत होगी, how can we live in harmony with nature,
and also how does nature sustain in life. So definitely sustainable living, basically sustainable living is a practical philosophy, and that aims to reduce personal and the social environmental impact by making the positive change, and who is contract the climate change and other negative environmental concepts. You know, when sometimes people they are called climate change, and sometimes they are called people not climate change, it is the climate crisis. So very interesting this theme, and also it is for relevant in our human life, sustainable thinking, and how to promote sustainable thinking to the all institution of our India, not only India, all over world. And basically World Environmental Day, you know, 2022 themes, only one earth, and focus on living sustainably in harmony with nature. Basically the government of Sweden will host the World Environment Day 2022 partnership UN environment program, you know. Basically we cannot have one and without the others. So ये सारी चर्चा होगी हमारे बीच, नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर जुड़ रहेंगे, और सबको हम फिर से स्वागत करते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। किसी भी प्रकार दिक्कत होगी लाइव चैट कर सकते हैं, हमारे बोथ पैरेलल लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब भी चल रहा है, चैतन्य कॉलेज पामगढ़ यूट्यूब में जाएंगे, वहां पर लाइव आपका देखने को भी मिलेगी। साथ ही के साथ हमारे इस सेमिनार में लगभग 300 प्लस रजिस्ट्रेशन आया है, मोर देन डिफरेंट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन ज्वाइन किए हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के बाहर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पटना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और खास तौर पर मैं प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनके सारी इंडियन जो ग्रुप है, लगभग 10 ग्रुप्स हमारे इस सेमिनार में एक्टिवली रेस्पॉन्स मिला। और रामेश्वर प्रसाद सर नमस्कार, आपने बहुत ही बहुत बहुत हम आभार है, आप इतना अच्छा इसमें हमारे योगदान दिए। साथ ही के साथ हमारे जो छत्तीसगढ़ से प्रोफेसर सर कमलेश सर, डॉक्टर विमल पटेल सर, डॉक्टर कावेरी दाभड़कर मैडम, संगीता शुक्ला मैडम, रायपुर से उमा गोले मैडम, और साथ ही के साथ शीला श्रीधर मैडम, और सारी आउट ऑफ स्टेट में बहुत सारे प्रोफेसर ने इतना अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके वजह से आज इस सेमिनार में हम सब के बीच इस चर्चा होने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेशन भी होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन में आफ्टर एमिनेंट स्पीकर के बाद जब एंड होगी, उसके बाद आप माइक अलाउ करेंगे, उस टाइम आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और आपके साथ बातचीत होगी। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू ऋषभ सर। थैंक यू सो मच सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे इस सेमिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीपी सती सर को संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा। उन्हें आमंत्रित करने से पूर्व मैं सर का कुछ थोड़ा परिचय मैं देना चाहूंगा। आदरणीय सर अभी डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। सर 27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण है कि सर इरिट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अस्मारा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक सर जिन पुरस्कारों, सम्मानों, अवार्ड से सम्मानित है, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। उनमें से कुछ मैं बताना चाहूंगा। वॉसेट चूरिक स्विट्जरलैंड द्वारा सर बेस्ट पेपर प्रेजेंटर का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। CSPIFI अवार्ड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज बीजिंग से सर ने प्राप्त किया है। सर अब तक 36 राष्ट्रों का विजिट कर चुके हैं, वहां अपने पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं। अभी तक आदरणीय सर के 33 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आदरणीय सर 29 बुक्स को लिख चुके हैं, इनमें से 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुक्स हैं। सर के करीब 50 से अधिक आर्टिकल्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है, एक लंबी सूची है, बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इसे संक्षिप्त में ही बता पा रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय प्रोफेसर वीपी सती सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय सर। Thank you very much for this
very elaborative introduction. Today's Chairman, Vice Chancellor of NandKumar Patel University, Principal of Chaitanya College, Dr.V.K.Gupta. We are very eminent and our senior guardian, Professor Sudesh Nandiaji, Madam Namaste. And because she does not know me, we did not have any meeting, but I know her because in the many platforms and also some offline seminars and workshop I have seen, but we do not have any contact. Anyways, Madam is very senior and I know lots of things to say anyway. Thank you, Madam, for joining. And we have also one of the now emerging scholar, Dr. Rameshwar Prasad. He is doing well for the geography and connecting the people across India. So he is doing a lot for the development of geography. We have this Dr. Narendra Nath, who is the narrator of this program of today. And he is very eminent, connecting the people, doing lots of work. My congratulations, best wishes with him. And we have our also fellow colleagues. Dr.Tapas is my brother, younger brother. And we are very close to each other. We have also from JNU, Pandeyji is there, I know him also, and another lady speaker. Dear participants, I thank you very much for Chaitanya College, Dr. Narendra Nath, and also the principal of Chaitanya College for inviting me this very special occasion on the World Environment Day. And I will not take much time, and I would like to go for because I wanted to go for extempore, because this is not, we are celebrating Environmental Day, but the Chaitanya College asked me to make a presentation. So I have a brief presentation on that occasion, and I would like to share it, and then I will start my this speech. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So the question is that why we are celebrating this Environmental Day. It has a long history. Today we are celebrating the Golden Jubilee of the Environmental Day. Exactly 50 years before, we observed only one Earth Day. What happened is that 1972, the UN started organizing the World Environmental Day, and they have passed one resolution in 1972 in Geneva, and the theme of that one was only one Earth. I will go later on for this. So this time, the World Environmental Day theme is also one Earth, as it was the first time 50 years before. And the theme is calls for transformative changes to policies and choices to enable cleaner, greener, and sustainable living in harmony with nature. The slogan is that in the universe are billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets, but there is only one Earth where we are living. So shaping, conserving this Earth for a sustainable living of the humankind is the theme of this time, this program, the World Environmental Day. So the history, as I told you, that in 1972, UN General Assembly designated 5 June as World Environmental Day.
The first celebration took place in 1974 under the theme of Only One Earth in the city of Spokane in USA. And the theme of the same day is also in 1972 Stockholm conference, that is the one its finite resources, and also called also the Stockholm plus 50. So these are something the historical background of the environmental day we are observing today. So the objective of this environmental day was to raise awareness on the problems facing our environment: air pollution, plastic pollution, illegal wildlife trade, sustainable consumption, sea level increase, and food security. Celebrating to right to a healthy environment, saving from possible damage due to industrialization, to spread awareness about environment due to rising pollution levels and climate change, to spread awareness about the importance of conserving the environment and negate the impact of human activity on the environment. So the United Nations has, defined this environmental day very nicely, and it says that the celebration of this day provides us with an opportunity to broaden the basis for an enlightened opinion and responsible conduct by individual enterprises and communities in preserving and enhancing the environment. This definition is given by United Nations. The impact of challenge, the pollution of air, land, water, and the resulting loss of biodiversity are negatively impacting the full and affecting enjoyment of all human rights and jeopardizes the achievements of the Sustainable Development Goals. 1970, the transition phase of the changing environment. We know that before 1970, there was not much discourses or consensus on the environment, but after 1970, when all the stakeholders, whether a scientist or academician or a farmer, they observed that there is something wrong with the environment, and then they started thinking on environment. And also the environmental geography particularly, or the environmental studies in the universities and colleges within and outside of India, we have started after 1970 because there was something wrong with the environment that we thought of, we observed, and then we started thinking on this environment. What is environment, what environmental changes we have, and how we have to conserve this environment. And even if you see the list, a long list of the environment, these climate change conventions at the United Nations level or outside of the United Nations, there are many, and they have started this. So this is a brief historical evidences of the environment. So what was the need to, that celebrate the environment day, and what is the need of today? What happened during this period, during the last industrialization? There were lots of changes, as we know that this all kind of things that I am going to discuss in my presentation. So one of the reasons that that the mankind is, we call it nowadays, the new term has come, and we are living in age of Anthropocene. The all kind of the human activities, human-induced activities are there. So the population is the cause root of all these things, whether it is positive thing that happening on the surface, or it is the negative thing that is happening. And the most probably for that is delimiting and also declining environmental conditions,
is only due to the high population growth all over the world. As we know that in about 1600, there was 50, 60 lakh population in the world, and now it is more than 7 billion population day by day, and we are also suffering. India is also suffering. Though some people say that the high population growth is maybe resources for the country, but because this excess is everywhere is not, that positive. Excess is always a negative term. So because of this high population growth all over, particularly nowadays in developing and underdeveloping countries, have created this havoc for the environment. And what happened for this, that we need settlement, we need agricultural land, and then what we do is that we have, that constructed houses or other economic avenues on the agricultural land. So agricultural lands also shrinking. India also, we have a large arable land, one of the, that largest world country where arable land is the highest, but it is shrinking. Yes. स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या सर? अभी नहीं दिख रहा है आपको कुछ? अभी फोल्ड हुआ है सर, प्लीज। अभी नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, अभी जस्ट लॉस हुआ है मेरे ख्याल से, फिर से। अब आ गया? Can you see now? We can see you, sir, but it is not the screen. No, sir. Please go to presentation. Now it is coming. You are visible, sir, but slide is not there. Oh, that is. Earlier it was there. Yes, sir. Please. Yeah, earlier it was there, sir. You can again go to presentation mode, sir. So Sir, I will share it again. Acha, okay. What happened? Maybe there is some problem. Yes, sir. Then I have to go later. This is problem. Now it is seen. Yes, sir. Okay. Okay, sir. So fulfilling of the human needs in terms of the habitat or in terms of other economic avenues, we have constructed, we have, encouraged the agricultural land. And now everywhere the agricultural land is shrinking. And this has at the same time was depletion of forest, because for agricultural land also we have encouraged this forest land. There are many cases also. We have some cases in the Himalayan region where there is a large scale encroachment, and then arable land is declining in these areas. I have some example of this depletion of forest that I will show in my next slides, that how the rainforest and coniferous forests are depleting for economic uses, in mainly in the rainforest equatorial region, and also the the temperate regions. Industrial development was one of the root cause of all this environmental degradation in terms of pollution and this and that, because of this carbon emission from the chimneys, and also the garbage coming out from the industries, contributing for a large scale water pollution, and this and that we will discuss also. Increasing number of vehicles and fuel is emitting into atmosphere. This has become a very, very, that prominent problems all over the world. And then what happened to meet out the, that fuel need or energy need for industry and for vehicles? We have whatever the fossil fuels we have all extracted them. We know that India also nowadays, we have problem of coal, because large scale coal is already extracted from the Chota Nagpur plateau, and wherever the coal reservoirs are found in India. And now many times you will read and you will hear news from the
in media that it may be a black night, or China also observed the black night last 2-3 months before, when there was coal crisis and all these things. So we are also facing this problem. High carbon emission is there. And today I was reading Amar Ujala, this e-paper, and what the Wadia Institute of Himalayan Geology people, they said that they have found some carbon contents in the Himalayan regions coming from this through the El Nino process, and it is coming from the European part, that Mediterranean Sea, directly, that blowing towards the Himalaya, and they have found, and they have made one research team to see that how much the emission is coming from the western part. So this is one of the things that I will discuss in my another slide. And also increasing greenhouse gases. We have also the particular data on these increase in greenhouse gases. I'll show you that how the greenhouse gases is increasing and what their implication is. So that all causing to high environmental pollution, that we know that in the main city areas, pollution is very high. But even in the nowadays in the Himalayan regions, which are having high altitude regions, they have forested areas. They have some good weather climate, like in Aizawl, where I am living. There is just negligible pollution. But most of these plain areas or valley regions, they are receiving a high environmental pollution. So that was actually the triggering forces that we are celebrating the Environmental Day. And actually, this what we do also, that it is only celebration. What we do is that we celebrate on 5th June and then we forget it. It is a high time now to celebrate it every day. It is not possible also. Celebration by mind means that you are always aware, and you are making people aware about all these environmental impediments, and you are awareing them to, that through various means or various awareness programs. So it should be there, not only one day. Awareness is not good. So I was talking about the, the depletion of forest, and this now the Canada, Alaska, and Siberia where this tundra forest, the boreal forest, or they are also temperate forests, they have been largely extracted for making the, these furnitures and also plywoods. India also importing plywoods from Canada, and large scale these forests were extracted, coniferous forests were extracted, Siberia also, and then there are huge forest, the depletion of forest. The tropical forest of equatorial region, particularly of Brazil, are being destroyed rigorously by the government, and these forest lands are transforming into agricultural lands. And I have one incidences that I know about this. In 1970s, the government of Brazil has ordered to cut a large scale forest area to convert them into the agricultural land, but it was not successful. They could not convert this forest land into agricultural land because of, the typical disease. Workers, they were working in cutting of these forests. They got, and many people died during this time because of that, the very particular situations. Because if you will disturb the nature, nature has many ways to disturb you. So that was there. But still recently, I have heard, I was reading one newspaper again, the Amazon basin forests are being destroyed largely, and it is the government, that initiatives, and they are taking more land under the, that the forest area for some economic avenues. Yeah, definitely for the development, we need some land, we need space, but not on the cost of the environment, that we have to think, and we have to go for a middle way. This is like this. So consequently, the region is getting acute problem as health hazards and imbalances in the atmospheric phenomenon that we have seen also. This year, during winter, this winter,
we did not have any transitional period between winter and summer because winter spell was long and immediately summer came. So this is something that acuteness we are receiving due to this, that all the human responses, that the extra responses to the nature. And there is one example that I was just talking about, that how now this carbon is being transporting from the west to the Himalayan region. And that also we have found during the Iran-Iraq war in 1990-93, because Iraq has bombed on many of the wells, these petroleum wells of Kuwait, and they were burned, and then carbon contents were found in the snow area in the Himalayan region. That was found that time. And then during the winter, when there was snowfall in the Himalayan region, particularly Jammu, Kashmir, and this Himachal, Uttarakhand, Himalaya, there was some carbon contents. So this snow, white color, it was carbon color. So that was also this some consequences of this Iran-Iraq war during the time. This another triggering force is urbanization. We know that the many places have become heat islands. We have the situation in Delhi because we have all very unplanned cities, old cities, and making them also planned also very difficult because we all have vested interest. We have our own interest. We have the communities different. Also, we have a culture. So all these are, that are the impediments for that all kind of this hindrances on the way for any kind of, making the urban cities livable. Slums are also increasing, though we have lots of smart cities coming, but I did not see that any smart city is smart. Only, that some structural change along the road or somewhere else, but they are very narrow road slums are still there. And then also, that we have vertical and horizontal sprawling of cities everywhere. And particularly what I understand is that this area between Dehradun and Delhi, it is very highly tectonic area, very sensitive to earthquakes or, very active to this movement. So lots of many buildings coming, more than 50 stories. When you go to Delhi to Dehradun, this zone is highly sensitive and comes under the earthquake fourth zone in mapping. So this is very, very big problem, and also horizontal spanning is there, sprawling is there. So this is becoming because of the population. So what we need is that actually we must have a population control policy. India needs it very urgently. Otherwise, it will be very, that havoc for the entire country. These are some examples of burning fossil fuels, how fossil fuels are burning. Sorry. And that all carbon is being emission, and there are large consequences coming out of it. Also, another example of this, that the industrial areas, the carbon emission is very huge. So that the increase in carbon, all greenhouse gases also due to this carbon emission into the atmosphere. In many cities also, this number of vehicles increasing. One, I will give you an example of Aizawl. During last 5 years, Aizawl received 85% increase in vehicle. And in Aizawl city, every household has more than 3 vehicles average. That also causing more problems for, that in the city areas where the population density is very high. So how this greenhouse gases are increasing from 1750 to 2003, carbon dioxide gas increased 34%. Methane has increased 152%. Nitrous oxide has increased 18%.
And we know that the ozone layer is being depleting, as you know also. This is even chlorofluorocarbons, carbon. It was in 1950, it was 0, now it is 880 ppt. So this is increasing largely and causing for large scale environmental degradation. Another ozone is, one ozone is in the atmosphere. This is the life supporting layer, protecting us from the UV rays of the sun. But another ozone is that is due to the photochemicals industries in and surrounding of the cities. So that ozone is also very, very harmful. That is greenhouse, one of the greenhouse gases. So these all are increasing. You can see the trend also. It is highly increasing, and increase in these gases will definitely have, that adverse consequences for a sustainable life of human on this unstable earth. So consequences we have seen also, the global warming and climate change has become one of the huge problem. And now everywhere the scientists and the people, the stakeholders who are knowledgeable stakeholders, they are just telling, even recently the Bill Gates, one in his interview said that the climate change or global warming will be thousands times more than what we observe this COVID-19 pandemic in this 2020-21. It will be more panic than the COVID-19. So that climate change is one of the main issue. Ozone layer depletion is there. We know that there is a hole of about 11,000 square kilometers like the continent of Europe, and the hole is increasing above the Antarctica or this Oceania continent, Australia and New Zealand, and causing for the skin cancer. Because I did not visit Oceania, but I have read that many people in New Zealand and Australia, they are facing skin cancer because this ozone, this UV rays of sun directly falling in these areas. So it has also impact on lots of impact on wildlife. We have seen also extinction of flora and faunal species. I'll give you one example that is my observation and my study on the Uttarakhand Himalaya, that in areas of where citrus fruits and apple were grown, they are either extinct completely, vanished completely from these areas, or they have shifted to the higher altitudes. So the area which was the, you know that the largest area in terms of producing citrus and apple, you will see there is no apple grown. The belt also, there are many belts in this area. In the fruit belts were delineated, and large scale fruits were grown there in the temperate area, but you will find there is no fruits also. And we have also seen one example I will give you, because that is my work there. We have seen, because pine forest it grows in the subtropical area, and because of the warming of the valleys and middle altitudes, the pine is invading the oak forest, which is a temperate forest. And in many locations in the Himalayan region, oak forests have disappeared because of the invasion of the pine forest, and pine forests have shifted to the higher altitudes. These are some shifting and extinction of the floral and faunal species, particularly in the Himalaya, that we have observed. Sea level rise also, there are lots of studies is being done and lots of speculations is coming. The UN, IPCC committee, this fourth committee of ICCC, under the chairmanship of Professor Rajendra Pachauri, they have already declared that there will be sea rise, and if this will be continued, the coastal region will be submerged. And also they have, America has also started shifting the people from the coastal area and shifting them to the another places, and this is one of the reasons. Glacier melting is one of the consequences due to this climate change. And we have example I will show you in my last
this another slide that how this glacier melting and what happened the Rishi Ganga in Chamoli district in 7th February this year, how this year and how last year, and how was it 7th February last year. So extreme weather events also there. I will show some one small video also on the Himalayan. We have health problems. The future impact of climate change will be enormous. There were many environmental conservation movements like Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro, and then they have started in that Earth Summit. They resolved that the carbon should be reduced, and the carbon level should be equal to that of the around that of equal to the 1992, like this. Then there was again Kyoto Protocol in 1997. All this protocol and summit could not be, executed because of some countries they don't want to sign on these, resolutions like Kyoto Protocol. Also, it aims to reduce the carbon emission from the atmosphere at the level of the past. Like this, it could not be possible. Then there was Sustainable Development Summit in, this Johannesburg in South Africa in 2002. They coined the term Sustainable Development first time, and they told that the resources we use should sustain the present generation, and it should also be available for the future generation. That some sustainable development concept was coined. There was Bali Convention in 2008, Copenhagen Summit 2009. Recently, there was Paris Summit in 2015 that says that, that every country can move by themselves, that how much they want to reduce the carbon from the atmosphere and how much they can reduce the use of the fossil fuels for their development activities. Then in India, we have Chipko movement in 1970, one of the very, very important movement from the Dholi Valley in Rani village, where the Gaura Devi initiated, and they hugged the tree. They asked the contractor, if you want to cut the tree, you first have to cut our head. And because of the UP government, then the UP government ordered to cut a large-scale temperate forest from Dholi basin. And then this was the Omen movement, and then it became the social movement in Uttarakhand, and nowadays this is very popular. Himalaya Bachao movement is another important movement for environmental conservation coming from Uttarakhand. Narmada Bachao, the Meera Patekar, that she was the forerunner of this Narmada Bachao movement, and there are many, many movements coming for this environmental conservation. So also this consequences, ozone layer decrease, that I have already told you. High climate variability and change, we have seen also. You see that in 2012, there was only 160 centimeter rainfall in Uttarakhand. But in 2013, there was about 300 centimeter, 3000 millimeter rainfall. Therefore, the Kedarnath tragedy came. And then this is also variability very high from year to year, and then that is leading to the changes. The snow melting is the sea level that I have already talked about you, and then this Antarctica continent has the snowpacks, large snowpacks, and it is speculated that if the Antarctica is, the glaciers are or snow is melted, then the entire world can be submerged because that much snowpacks are there in Antarctica. And then we are also talking about this 1+5 degrees centigrade increase recently in the UN meeting. They told that there is 1.5% increase in the will be in the temperature of the earth, and that is all coming in. Uneven and irregular trends of the rain also. As in India also, it is very irregular. Illinois also, the process that I will not go because you know about this, I will shift here. So one of the problem of is the water pollution,
And particularly when we talk about the Ganga, is our mother Ganga, it is our mother, it is a river from the heaven, earth, and also it is a river of the beneath of the surface. We have all emotional attachment with this. But if you see that water pollution in Ganga, particularly after Haridwar to the Ganga Sagar, where it meets with the the Ocean, Bay of Bengal, and other. The branch goes to the Bangladesh, and then it goes to Bay of Bengal. So the water is arsenic contaminated, Kanpur city, because of all leather industries there. And it is shown here in the picture also. In Kanpur, it is very high growing city, polluting by industries and all these very high level that is also not useful. Even you cannot take the water in the hand. So this is all going on along the Ganga because of all these industrial developments. So we have many campaigns going to, their Save Ganga or the Namami Ganga campaign earlier also. But it is not successful. These are not successful because very difficult to manage them, this. And then another thing is that ecological changes in the Ganga. If you see that this area, the first one is after the Uttarkasi, because of this Pala Maneri Dam, the water is just reduced, negligible water flowing down. So it has some ecological implications because for reservoir, water is accumulated in a water reservoir and water flowing down is almost gone. And then another picture is the Srinagar Gadwal, because there is one, that one dam project of 4,000 megawatt electricity generation, 400. Sorry. So the water in Srinagar in the Ganga is now, it is like a lake, and somewhere it is dried. So this has some implications also our development. And here, if you see that the Ganga in Rishikesh at Tirveni, where we have the Aarti, evening Aarti, all polluted because we also are the reason for this all pollutions and lots of constructions and this and this. The natural flow is gone. And along the Ganga, if we see that the sewage generation is 2,723 in MLD. And then only we have treatment only 2008. So there is a big gap. So we have more generation, treatment capacity is less. Therefore, we are facing the problem along the Ganga. So I will show you something about this anthropogenic activities and environmental degradation in Himalaya. I will not take much time for this because time is moving ever. I will go very fast also. I know you are the situations because other speakers are there. I will go very fast and then I will stop here. So this is the one place called Narayanagar, and during 2013 when there was the Himalayan tsunami, at the same time, same date on 16-17 June, when there was the Kedarnath was collapsed completely. This township, there was huge rain in this township. The Pindar River is inundating, and this township was gone. I will show you one if it can be work. I don't know. Yeah, maybe it is working, and you can see the situation. So this is the Pindar River originating from the Pindari Glacier, and it meets with the Alaknanda River at Karanprayag. So if you see this river, this was inundated. Huge rainfall was there, as the Kedarnath was completely washed away. This entire township you will find when I show you, it was also completely washed away. So this is what's going on the earth nowadays and how we have to conserve the environment. So this is the situation we are facing. सती सर मेरे ख्याल से वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से. ठीक है. Yeah, this is for only to show you because I know your limitation also, time is less, and then this is for only this one. Yes, so you have seen that there are also flash floods and debris flow
They are very common phenomenon in entire Himalayan regions. I have many these photographs and these videos that I have taken. And I am very fortunate enough that I have, even working in Mizoram, I have a chance to visit many times in the Himalaya, mainly the central Himalayan regions. Therefore, it was possible to me to publish some good papers and some good books on all these issues. So after this, you can see that you have seen this town here. And after this flash floods, the town is entirely washed away. Because this is located remotely, so nobody knows about this. Kedarnath is very popular Hindu highlands, shrines, so the people know that. And this events, but this event very few people know. One side of this town also, this road was earlier, and after this 2016, 2013 flash floods, this is also gone. So you can see that how this environmental degradation and flash floods and landslides, also this debris flow, they are very common events all over the Himalaya. There was one, that figure of 1992. In this place, there were about 21 settlements and also cow sheds, all have washed away due to this debris flow at night, because it was at night time. Even there is no remain of even a settlement. That water is very huge, and this all going. And this is what I was talking about, the Kedarnath tragedy. This first picture is before the tragedy. This is Alpine Shrine, Highland Shrine for Hindus, place abode of the Lord Shiva, the Lord Kedar Baba. And now the second picture, it is completely washed away. And about more than 10,000 people died during. Many are missing also till today. They did not have any remains therein. So recently, the Rishi Ganga and Dholi Ganga calamity, you know that in 7th February 2021, there was debris. There was the glacial burst in the Nanda Ghunti area, Nanda Devi, Nanda Ghunti area. And then because there were two closely located two hydropower projects, one was in Rishi Ganga, another was in Tapovan, Pali, in the Dholi Ganga. So because of this all construction work, and there are also 16 small micro hydropower projects up to Pipalkoti, Vishnugad, from Rishi Ganga. So all these human activities also how, and there were more than 200 people, they died due to this, and this all going on. So you see this picture also. The first two are the before this glacial burst, debris flow, and then second is after this debris flow was there, and then entire area, even 2 villages are now on the risk because of this. They are very remotely located, and it is very difficult to, they renovate and reinstate these villages. So they are all, even life is in risk. So all about this, I just want to go very fast also because I have some more time. I think the designated time to me. So what can we do? What can be done to, that conserve environment? So it is very easy to say that you do this, you do that, but how to implement these things are still a milestone. And that we don't have even a mechanism. I know that many mountain areas in Switzerland or in China, they have road constructions along the river, but all the pillars. So I have one example from Chengdu to Baoshan. Baoshan is a city in the Minjiang River basin. It is about 160 kilometers. And out of 160 kilometers, they have constructed the road, about 60 kilometers by tunnel and 40 kilometers on the pillars. They did not cut the fragile land along the steep slope. So they constructed pillars along the river, on the river, and then there is no side issue. The technology we can use in the mountain areas also. Otherwise, there are lots of landslides and this can be a problem.
So this technology we need, otherwise we have many things, and every seminar we will say like this. You will also ask me questions, sir, this is all we are listening from the previous speakers, and then we have nothing. So what we have to do is that optimum sustainable use of natural resources are inevitable, more use of renewable resources now, because solar energy may be one of the important energy resource for the future generation. But the space, we don't have space. So solar energy needs a large space to, that construct panels in the, because that can be only. Now people, what they have done, they have made some solar panels for the water. So even there is a lake and they are them in the lake and generating electricity. And also this wind energy is also very, wind energy is also one of the useful energy, non-renewable energy, and Himalayan region is very, very good for. But again, to construct all these, that things, and also this needs area. Equal development irrespective of developed and developed countries. This is required. The Kyoto Protocol also, and later on this Paris Agreement also. But to the developed countries, because they are very habitual of all these facilities, so they don't want to make them compared with the developing countries. So this is also the equity, parity, not not imperative. Parity should be there. That is also one of the question. Carbon trading, that we have already developed. The developing countries, they are that planting trees, large scale afforestation. And then forestation is one of the important, because it sequesters carbon. So if you plant trees in areas also, I have seen that in Chhattisgarh there are large scale campaigns. They are planting trees in the area, the barren land also. So that will also sequester carbons and will make the environment cool. And the carbon trading is also they are doing, because carbon trading is also some not justified, because the developed countries, they want to that use all carbons, and they are asking that grow plants. So this is also one of the questions. Reduction in the production of greenhouse gases, that we have to see. A strong international cooperation is there, but like Paris Treaty and other whatever the climate conventions were there, they did not do anything. Imposing taxes on carbon emission, like green tax. Many European countries has imposed green tax. So for industrialists, how much carbon you are producing, that level of tax you have to give, and then that tax will be useful for for remedial events, remedial activities to reduce this one. So I thank you very much here, and thank you so much for listening me and inviting me for this program, and I thank you so much. Thank you so much, sir. Yes. Question and answer session, sir. Please continue. मैं कार्यक्रम में जुड़े शोधार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो आदरणीय सर से आप पूछ सकते हैं। माइक अपना ऑन कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में आप। Sati, thank you for the nice talk. Yes, sir. I have a sir. As an individual in the present situation, an individual, can you suggest an individual can do? Okay. Yeah, it is very relevant. Yes, actually, everything depends on the individual.
So what we can do is, if individual is reducing all its needs or requirements in terms of that, whatever we are also the responsible for this all, that all kind of the environmental degradation that we are facing. We equally responsible. So what we can do is, we can minimize our needs. That is the first one. In our houses, in surrounding of houses, what we can make it also the green, that the concept of green houses also. And if you are living in the city area, you can plant, you can make some plantation on the roof, you can grow the whatever the green vegetables on your roof. You can, the best thing is that you have to go individually to reduce your needs, and also you have go for green planting wherever you are living. You are in the rural areas, you can also contribute large scale planting. But what we do is that we first see our neighbors, and we give example that they are not doing, so we will not do also like this. So it is our duty now first to reduce our need, whatever. That otherwise, whatever you have the resources and whatever you have the capacity building, based on that you can initiate by yourself. And there are various ways also. So planting is one of the important things. Thank you, sir. So our preferences should change, that we should have to minimize our needs. Thank you, sir. May I ask a question? Yes, madam, yes. Hello. Yes, Yes, ma'am. madam. Please. Thank you so much for presenting such an exhaustive description of the environmental problems that we are facing in society. See, one of the major problem is how to solve the macro environmental degradation which is taking place. You have very rightly pointed out the carbon pollution on account of in the Himalayas on account of either from Europe or from the Middle East. And we have another pollution problem which is taking place in the Himalayas on account of our movements that we have to to Amarnath and other such places where our young people. Now, how to really control this? See, at the micro-environmental level, we say, okay, I keep my house clean and I see to it that my neighborhood is clean. That could be one of the ways. But then how to control these are a big challenges where you feel really helpless. Whenever the pilgrims go, we keep telling them how to take care of the garbage which they collect, but it doesn't happen. See, we keep on seeing pictures after pictures where there are heaps of garbage collected there. And whenever there's a storm, snowstorm or windstorm, then that garbage gets put all over, causing all the more further damage. Despite, in addition to the river pollution which we have been facing all along, do you please have any strategy for such kind of macro environmental degradation? Yeah, thank you very much, madam. This is also very relevant, and we are facing this problem. Recently, our Prime Minister also was very sad to see the garbage nearby Kedarnath, because there was even within this 10 days, 15 days after the opening of the Kedar temple, there was huge that like towering this garbage, and then even Prime Minister interfered. Madam, I had an opportunity to visit Mount Ganga, which is very close to the Lhasa. And it is about 5,000 meter altitude. And you can go there. They did not construct any road, but they have ropeways there. So if you go to the mountain Ganga, the glacier area, that they have constructed this all the route by this wood route, because that area is very rich in wood. So they all this the way they have made pedestrian all route. But what they have done is that they have employed several employees there,
And even if you are throwing a small paper on down, they have this pickup. The women and men, they are employed there. They have pickup. They are picking into this dustbin, and they have the treatment in itself in the this Mount Gonga, which is about 5,000 meters from mean average sea level. And then very neat and clean area. They have very clean toilets also there. And after 100 meters in a very small area, they have very beautiful toilet. And inside also they have some sand, salts, everything, soaps also, everything. Anything you are throwing, they have also garbage, these dustbins, they are big. But if you are not putting on the dustbin, you are throwing on ground, they will immediately pick up and then keep it. So this is also one of the important things, but we need resources. And resources we have, even monetary, so no problem, but we have some mechanism to develop this. And then that area, the glaciated area, you will not find even a small paper that is putting on the ground. So that may be some model we have to borrow and we have to implement in India. There is nothing, no problem. I will give you one example of Dehradun city. From railway station to the Ghantaghat area, this is about 1.5 kilometers. There is no a single toilet. And this is very VIP road. No any dustbin is keeping there. So people, they are eating mungfali and whatever they are eating, throwing on. And whenever they are going, they can go open urinal because there is 1.5 kilometers and the area for people, traveling for the area is for traveling people from one place to another place. So that basic infrastructure is lacking also. India, and Dehradun is listed in the one of the smart city. So these are some areas where we can look into. There is we can control also. Sir, you're quite all right, but I'll give you another example of the Everest climbers. See, Yes. now how much garbage is left by the climbers when they reach there. Now, Yeah, these yeah, are perpetual problems, and how to really sensitize them, even if we say that nothing should be. But because of certain constraints, they leave everything and then they come back. Yeah, Now, that's as far as the example that you have cited recently about the clean toilets, let me tell you, Delhi is full of such shauchalayas all over the city. But at 2/3 of these toilets are not worth visiting. Yes. They are That's not maintained. Then what is the point of having them? yes. You know, we say that we have built so many toilets, but when you, as a passenger or as a, if you're on the road and you want to use them, you are not able to use them because they're not clean enough. Yeah, that's you right. come back with some kind of infection if you use them. Yes. So it's not only providing the facility, it is also the maintenance. How do we go about and how do we sensitize? Even if we have, say, 100 of volunteers who are picking up the garbage, as you rightly said that they pick up the garbage. But once they are there, you would find even they won't pick up the garbage. They have a job, they would sit in one corner, sit and smoke bidi, or wait for their time to when they are free from the duty. Yes, madam. So, such are the difficulties that we face in our country. Yeah. For Amarnath Yatra or for any kind of yatra, lakhs of pilgrims are going there. And in fact, there is a long wait of the pilgrims. Now, how can you really assist them with all kind of volunteers of this kind? Is it possible? No, what is the physical situation that becomes for us to very important to maintain all these services? That's why, madam, we are facing all over India this the maintenance problem. Maintenance problem. So even our one instrument is damaged, we will not maintain it. We cannot repair it. We will throw it and we will buy another. That is all. And then it is also an individual problem that because we have got job that much. If we are even permanent, then we will never do. So that is our mentality also. We need to change our mentality first, individual level. So, how to do it? That is one of the problems. That is. But we have to be first. First, we have. Suppose I know one of our just vice chancellor.
Professor Tolanga. He was our vice chancellor last time. So in one program, because they serve some biscuit also, and there was no dustbin, so the biscuit wrap he put in his pocket. So people asked him, sir, you give us, he was vice chancellor, employer, we keep this. No, I will keep in my pocket. Where I will find the dustbin, I will. So some people are like, they have self-disciplined and they do like. But they are exceptions, things. They are exceptions. Yeah, They that's are right. exceptions. See, if 99 out of 100 people behave in a very irresponsible manner, then one person's contribution, how much it can help in the cleaning. That is also. That your point is well taken, right? Also, this is the problem. What we need is a thorough sensitization program right at the grassroots level, and keep doing it. Not that we have one series of lectures and we feel we have done our job. Yeah, that's right. People have to be repeatedly told that they should not do this. And some of them, they literally come to fight with you if you speak anything against them. See, if somebody has littered on the road and you point it out, the person may come and fight with you. Yeah, that is also. He may show you the gun. You see, we have that culture coming up on our streets. Yes. Yeah, you are right, madam. You are very right. Yes. So though as academicians, as intellectuals, we have very fine ideas of how to going for environmental preservation, conservation, both human environments, social environments, natural environments. But when it comes to practice, we find that we still have untrained and irresponsible citizens, I would say. Yes, right. Because like, yeah, right. Yes. I'm really very pleased to see the coverage that we have given to our environment problems and the data and literature that you have provided us. Thank you so much. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Continue resource. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am. मैम ने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया, एक प्रैक्टिकल समस्याओं को हमारे सामने रखा जो हम सबका आमना सामना उससे होता रहता है। ये मानसिकता की समस्या है, मेंटलिटी की समस्या है। एक फेमस सेइंग है, हिंदी में बोला जाता है अक्सर कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, हमको समझना होगा कि क्या बेहतर है एनवायरनमेंट के लिए। बहुत ही प्रोडक्टिव टॉक जारी है। अब मैं अगले क्रम में JNU से डॉक्टर दीप नारायण पांडे सर को आमंत्रित करूंगा। पांडे सर नेगी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सर का इंटरेस्ट का क्षेत्र है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर पांडे सर को आमंत्रित करूंगा कि वे हमें संबोधित करेंगे। सर धन्यवाद। चैतन्य कॉलेज के प्रिंसिपल Dr.V.K. गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के आयोजक IQAC एंड साइंस एसोसिएशन और प्रोफेसर सुदेश नागिया मैडम, प्रोफेसर VP सती जी, और जिन्हें मैं इस आभासी प्लेटफॉर्म पे नहीं सम्मान दे पा रहा हूं, ऐसे सभी वरिष्ठ प्रतिभागी और विद्यार्थियों को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी पर्यावरण दिवस के निमित्त एकत्रित हुए हैं। जो भारत में वाद विवाद संवाद की परंपरा रही है, हम उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, एक दूसरे विचारों को
आत्मसात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रोफेसर सती जी का लेक्चर बहुत ही अद्भुत और सराहनीय रहा। आज मेरा जो विषय है लेक्चर का वो वृक्षारोपण के क्षेत्र में जीवंत प्रयास। अभी हमारे देश में वृक्ष को लगाने के लिए, वृक्ष को बढ़ाने के लिए भी चिपको आंदोलन की तरह साइलेंट या मौन आंदोलन इस देश में चल रहे हैं और हो रहे हैं। केवल एक ही समाज नहीं, भारत का कोना कोना, उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूरब तक, आप देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जाएंगे तो स्थानीय स्तर पर बहुत जीवंत प्रयास हुए हैं। अब मैं अपने लेक्चर को प्रारंभ करता हूं। मेरे लेक्चर का विषय है वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जीवन प्रयास। सर मोबाइल को लैंडस्केप में लेंगे क्या? अच्छा आएगा। हाँ, ले रहा हूं सर, मैं ले रहा हूं जी। आर्थिक और तकनीकी प्रगति ने मानव पर्यावरण को प्रभावित किया है। हम विकास की अंधी दौड़ में पेड़ के महत्व को नहीं समझे, अपने तकनीकी ज्ञान के दंभ में वृक्षों के महत्व को नहीं समझे। मानव विकास की अंधी दौड़ में अपने हाथ में लिए ग्रेनेड बंदर के समान है, और वो बंदर ये नहीं जानता है कि कब पिन खींचना है और इस पिन को खींचने से क्या होगा। बस मनुष्य उसी तरह से अंधी दौड़ में दौड़े जा रहा है। आज मनुष्य और पर्यावरण के जो संबंध हैं वो लगभग हम भूलते जा रहे हैं। हम अपने बचपन में जाएं तो शाम के समय घर के बड़े बुजुर्ग वृक्ष को नहीं छूने देते थे, फूल नहीं तोड़ने देते थे, या पत्ते, शाम हो गया है तो पत्ते नहीं तोड़ने देते थे। लेकिन आज की जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो और चाहे सामान्य स्कूल के भी पढ़े बच्चे हों, उन्हें इसका बोध नहीं है। और हमारी जो मानव सभ्यता है उसमें वृक्ष एक मान बिंदु रहा है। उत्तर भारत के लोगों में आम, पीपल के वृक्ष के बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। पश्चिमी एशिया के देशों में जाएंगे तो खजूर वहां का पवित्र पेड़ है, महत्वपूर्ण पेड़ है। आप यूरोप में जाएंगे तो जैतून का पेड़ वहां के लिए बहुत महत्व रखता है। यूनाइटेड नेशन की जो पत्तियां बनी हुई हैं, जो सिंबल में जो पत्तियां हैं वो ऑलिव ऑयल के पेड़ के पत्ते हैं, जैतून के पेड़ के पत्ते हैं। इसका मतलब हम पूरे विश्व में जाएं या भारत के कोने कोने में जाएं तो वृक्ष के बिना हमारे सांस्कृतिक कार्य, हमारे परंपरागत कार्य अपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसे मूल्यों की स्थापना या वर्तमान में ऐसे मूल्यों का संरक्षण हो रहा है? तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरे लेक्चर का जो पूरा उद्देश्य है तो 3 मुख्य उद्देश्य हैं। वृक्ष के महत्व को जानना, उसके विभिन्न पक्षों को जानना, वृक्ष का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को हम समझने का प्रयास करेंगे, और वृक्षारोपण के क्षेत्र में
जो जीवंत प्रयास हुए हैं, भगीरथ प्रयास हुए हैं, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। यदि हम वृक्ष और पर्यावरण को देखते हैं तो पर्यावरण में 4 मंडल ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल और जीवमंडल। ये चारों मंडल वृक्ष के योगदान के बिना अधूरे हैं। इन मंडल का अस्तित्व वृक्ष के बिना असंभव है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन और आर्थिक लाभ, ऐसे 2 विषय और जुड़ जाते हैं वृक्षों के साथ में। ऐसे हम 6 विविध पक्षों से आज के इस चर्चा में, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती है वृक्ष के जो लाभ हैं, या वृक्ष थल मंडल को कैसे प्रभावित करता है, वृक्ष जलमंडल को कैसे प्रभावित करता है, वृक्ष वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है, और वृक्ष जैव मंडल को कैसे प्रभावित करता है। तो थल मंडल में मृदा निर्माण, मृदा अपरदन, जलमंडल में वर्षा और भूमिगत जल, वायुमंडल में ऑक्सीजन की गुणवत्ता, ग्लोबल वार्मिंग, जैवमंडल में जो वन औषधि है, प्राकृतिक निवास और जैव विविधता। ऐसे 3 प्रमुख पक्ष आते हैं। ये मेरे द्वारा बताए जा रहे जो 3 पक्ष हैं, ये पूर्ण नहीं है, इसमें आप सभी के भी इनपुट जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं थल मंडल और वृक्ष कैसे। बात मैंने किया मृदा निर्माण और मृदा अपरदन से बचाव। एक वृक्ष ऊपर दिखता है, जितना सुडौल सुंदर बाहर दिखता है, उतना ही व्यापक और बृहद उसकी शाखाएं होती हैं। आप इस चित्र को जूम करके देखेंगे तो एक वृक्ष जमीन के नीचे कैसे मृदा को जोड़े हुए है, संसंजन जो क्षमता है, जोड़ने की क्षमता है मृदा को, वो वृक्ष में अद्भुत और अपार होती है। इरोजन को भी रोकता है, अपरदन को भी रोकता है, और जो भूस्खलन की घटनाएं होती है उनको भी रोकता है। उत्तराखंड में पहाड़ियों पर नेपियर के घास लगाए जा रहे हैं। नेपियर का घास जमीन के नीचे कई फीट तक मृदा को रोकता है। ऐसे हम जलमंडल की बात करें तो जल चक्र जो है वृक्ष के बिना अधूरा है। समुद्र के में वाष्प बना और इवेपोरेशन हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, लेकिन वृक्षों के माध्यम से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन होता है, पेड़ से भी होता है, घास से भी होता है। जलमंडल के साथ साथ हम वायुमंडल की भी बात करें तो अभी प्रोफेसर सती ने हमें बताया कि ओजोन क्षरण जो है या ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सब का बैलेंस पेड़ के बिना असंभव है या पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब हम जीवमंडल की बात कर रहे हैं तो एक जंगल अपने आप में एक सृष्टि होता है, एक दुनिया होती है। जैसे हम महानगर का एक इकोसिस्टम होता है, महानगर का एक पर्यावरण होता है, ऐसे ही एक भारत के बड़े बड़े जंगलों के भी अपने अपने पर्यावरण हैं, अपना अपना माइक्रो सिस्टम है। हर एक जंगल का अपना नेचुरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नेचुरल वाटर सिस्टम है, नेचुरल एनर्जी सिस्टम है हर एक जंगल का। और हर जंगल के जीव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के वृद्धि में सहायक हैं,
चाहे वो मांसाहारी हो और चाहे शाकाहारी हो। लेकिन हमें इस महत्व को हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। और आज जंगल जो है वन औषधियों के लिए जाना जाता है। जो गौरा देवी की बात भी हुई, गौरा देवी का जो गांव है, उस गांव के लोग कीड़ा गढ़ी के लिए जाते हैं। कीड़ा गढ़ी एक गांव है, वहां पर गौरा देवी जी का जो गांव है उसको कीड़ा गढ़ी गांव बोलते हैं। कीड़ा गढ़ी गांव का मतलब ये हुआ, उस गांव के लोग ग्लेशियर रीजन में जाकर के कुछ कीड़े इकट्ठा करते हैं और उन कीड़ों की कीमत 7 लाख, मिनिमम 7 लाख रुपए केजी है। और पूरा गांव इस समय मई जून के महीने में खाली हो जाता है। लोग ग्लेशियर रीजन में जाकर के उस कीड़े को ढूंढते हैं, कीड़े का को इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी, आप ये छत्तीसगढ़ का कॉलेज है, ये भी, यहाँ की भी बहुत बड़ी आबादी जंगल से औषधि लेती है, जंगल से लकड़ी लेती है और जंगल से अपनी आजीविका को चलाती है। ऐसे हम विविध पक्षों से चर्चा किए वृक्ष के बारे में। अब आपदा प्रबंधन की बात करें हम, तो आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ये 3 सीधे सीधे आपदा प्रबंधन के लिए वृक्ष के ऊपर निर्भर है। बाढ़ आती है तो वाटर की फ्लो कम हो जाती है, कटाव कम हो जाता है। वृक्ष होता है तो सूखा कम होगा, बादल को आकर्षित करेगा और भूस्खलन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि वृक्षों के जो जड़ हैं वो मिट्टी को रोके होते हैं। अब हम, जो आज का लेक्चर का मेरा मुख्य विषय है, वो जीवंत प्रयास। भारत में वृक्षारोपण सरकारी कर्मकांड तक सीमित रह गया। उसका परिणाम हुआ वृक्ष कम होते चले गए। जो समाज की सामाजिक जिम्मेदारी थी वृक्षों को बढ़ाने के लिए, संवर्धन करने के लिए, वो कम होता गया। आज वृक्षारोपण में हुआ, फोटो खिंचवाए और वृक्षारोपण हो गया, लेकिन पेड़ को लगाने के बाद पेड़ को पालना होता है। 1 साल तक पानी, उसको पेड़ को पानी देने की जरूरत है। तो ऐसे भी जो प्रयास के चलते हमारे देश में वृक्ष कम हुए हैं, इसके लिए भारत का एक आम नागरिक क्या किया है, भारत का एक जन सामान्य व्यक्ति क्या किया है, हम उस बात की चर्चा करेंगे। तो वृक्षारोपण के क्षेत्र में मैं 4 प्रमुख नाम और एक संस्था का नाम, संस्थाएं और हर स्तर पे हो सकती है, दिल्ली में ऐसी संस्था मेरी नजर में आई तो मैंने उसका नाम लिया। तो दारीपल्ली रमैया एक नाम, सालू मर्दा थिमक्का, जादव मोलाई, सच्चिदानंद भारती, ये 4 मुख्य नाम हैं। और सूर्या फाउंडेशन एक संस्था है वो, जिसमें से सच्चिदानंद भारती को छोड़ करके बाकी चारों संस्थाओं, चारों लोग पद्मश्री प्राप्त किए हैं। मेरे इस लेक्चर को तैयार करने के पहले मोलाई जाधव को पद्मश्री मिल चुका था, बाद में उन्हें अन्य लोगों को मिला है। अब मैं नाम लेता हूं श्री दारीपल्ली रमैया। 2017 में इनको पद्मश्री मिला। इनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ट्री मैन के नाम से जानता है। इनका ये एक पेशे से मजदूर हैं, गांव से शहर मजदूरी के लिए जाते हैं, साइकिल से जाते हैं।
इन्होंने जब ये 40 साल के उम्र के आसपास थे, मजदूरी के लिए जाते थे, तो इन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने पेड़, जब साइकिल से जाऊंगा तो पेड़ लगाते हुए जाऊंगा और पानी देते हुए जाऊंगा, आऊंगा लौटते हुए तो वृक्षों को, जिन वृक्षों को लगाया था मैंने, उनकी संभाल करते हुए। ये व्यक्ति, इन्होंने अकेले अपने बल पर 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाया, और ये अपने साइकिल के सामने, आप उनको गूगल में सर्च करेंगे, ट्री मैन ऑफ आंध्र प्रदेश या दारीपल्ली रमैया, तो आपको इनके बारे में बहुत सारी कहानियां पता चलेगा। कैसे समाज ने इनको नकारा, कैसे मजाक उड़ाया, कैसे साइकिल से जाते थे तो गांव के बच्चे पीछे पीछे इनको चिढ़ाते हुए दौड़ते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको गूगल पे मिलेंगी। लेकिन इन्होंने अपने बल पर, किसी सरकारी प्रयास से नहीं, इनका एक पैशन था पेड़ लगाना, और 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाया। इसी श्रृंखला में इनकी पत्नी ने भी इनके साथ में कदम से कदम मिलाया। देखिए, मैंने थोड़ा सा इमलाज कर रहा हूं कैसे इनका वृक्ष, साइकिल का स्ट्रक्चर होता था, और कैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे इनके साइकिल पे होते थे, और ये पति पत्नी दोनों इस प्रयास में साथ में रहे, इनका जीवन बन गया। अब मैं दूसरा नाम लेता हूं सालू मर्दा थिमक्का का। एक कर्नाटक प्रदेश की हैं, लगभग इनकी उम्र अभी भी 90 के आसपास होगी, और जब ये 50-55 के आसपास थी तो ये निसंतान दंपति थे। पति और पत्नी के पास पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थे। तो भारतीय परंपरा में है कि अगर आप 100 वृक्ष लगाते हैं तो एक पुत्र के बराबर सुख मिलता है। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी है। ऐसी किंवदंती को आत्मसात करते हुए इन पति पत्नी ने संकल्प लिया कि हम वृक्ष लगाएंगे। तो ये मंगलौर के पास में इनका गांव है। तो गांव से जिस शहर की ओर ये लोग मजदूरी के लिए आते थे, वो 4 किलोमीटर का एक पगडंडी था, उस पर बहुत ही धूप रहता था, उस पर कोई छायादार पेड़ नहीं होते थे। तो इन्होंने, इन पति पत्नी ने मिलकर 4 किलोमीटर की पट्टी में लगभग 382 पीपल के और बरगद के पेड़ लगाए। आज इस 4 किलोमीटर की पट्टी पे आप पैदल ही जा सकते हैं, आपको कहीं छाता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छांवदार रास्ता है। और आज भी इन वृक्षों, अब पति इनके तो नहीं है, लेकिन ये सालू मर्दा थिमक्का खुद अकेले वृक्षों को पानी देती हैं। इनके नाम से कनाडा सरकार ने एक इन्वायरमेंट सेंटर भी खोला है। और आप इस वृक्ष में, इस फोटो में देख सकते हैं कैसे इन्होंने पेड़, हर एक पेड़ इनके पुत्र की तरह है। ऐसी मान्यता वाली ये महिला है। अब ऐसे ही ये राजमार्ग का फोटो देखिए आप। इस राजमार्ग पे कैसे छांवदार पूरा रास्ता बना हुआ है। ये वन विभाग के प्रयास से नहीं हुआ है, ये सालू मर्दा थिमक्का के प्रयास से हुआ है। ऐसे ही एक नाम है सच्चिदानंद भारती। उत्तराखंड सरकार में ये प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक थे, और चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बोगला 2 प्रमुख नेतृत्व करने वाले लोग थे। ये चंडी प्रसाद जी के शिष्य थे। वहीं से इनको पर्यावरण प्रेम इन्होंने सीखा। इनका जो है, उत्तराखंड में हर एक गांव का अपना जंगल होता है, और गांव का जो जंगल होता है वो पशु पक्षियों के चारा के साथ साथ गांव के लकड़ी, जो भोजन बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है, वो उसका मुख्य केंद्र होता है। तो इनका जो पोस्टिंग है एक उफरैखाल गांव में हुआ। इनके गांव में मेरा जाना हुआ है।
लेकिन उस गांव में एक ना गांव का जंगल था और ना गांव के लिए लकड़ी था, ना गांव का पानी था। एक बार कुछ महिलाएं किसी गांव दूसरे गांव के जंगल में गई थी लकड़ी बीनने के लिए। गांव की महिलाओं का झगड़ा हो गया। ये बात इनको ध्यान में आया, तनाव की गांव में ऐसे झगड़ों में तनाव हो जाता है। फिर इन्होंने सभी गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, कहा कि हमारा अपना जंगल होगा, हमारे गांव का अपना पानी होगा। इन्होंने अपने गांव की पहाड़ी पर एक जो बाल्टी होता है, बाल्टी के आकार के गड्ढे खूब किए। उन गड्ढों में पानी इकट्ठा होता गया और उस गड्ढों के सहारे उन्होंने वृक्षारोपण किया और पूरे गांव को शामिल किया। एक प्राइमरी का अध्यापक तो गड्ढा खोद नहीं पाएगा, या उसके पास इतनी क्षमता नहीं कि पूरे 1000 गड्ढे खोद पाए। गांव के लोगों को शामिल किया, गांव की महिलाओं को शामिल किया और उससे आज उस गांव की अपनी नदी है, एक नदी को इन्होंने रिचार्ज किया। और गांव में आप जाएंगे तो खूब कलरव पशु पक्षियों की आवाज खूब कलरव होते हैं। और इन्होंने यूएनडीपी ने इनको कहा कि हम आपका प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो कुछ बातें आई, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि उसमें कुछ एनजीओ कुछ रैकेटिंग की बात आ रही थी और इन्होंने ऐसा। तो अभी भी वो गांव स्वामित्व जंगल है। लगभग 30,000 चाल खाल छोटे छोटे गड्ढों को बोलते हैं और आज वो नदी वहां प्रवाहित होती है। ये आप गड्ढों के आकार को देख सकते हैं इन जंगल के अंदर, या आप उन पेड़ों को गड्ढों को देख सकते हैं। ऐसा इन्होंने किया और आज ये नदी का पानी है, ये तालाब है उसी गांव का और ये नदी बह रही है। ऐसे एक नाम है मोलाई जाधव। मोलाई जाधव की कहानी सुनने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, एक उत्साह आ जाएगा। मोलाई जाधव 1980 के आसपास युवा थे और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इनका गांव था। ये ट्राइबल मैन है, आदिवासी या वनवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं। और मोलाई जाधव एक युवा अपने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने जाता था। खूब बाढ़ आया ब्रह्मपुत्र नदी में, बाढ़ खत्म हो गया, पानी चला गया। फिर क्या, जब बाढ़ का पानी जाता है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद छोड़ के जाता है, बहुत सारे पशु पक्षियों को छोड़ के जाता है। बहुत सारे मरे हुए पशु पक्षी थे, शेर, चीता, ऐसे जानवर मरे हुए थे। गैड़ा भी मरा हुआ था, सांप भी मरे हुए थे। बाढ़ के बाद की अवस्था थी ये। वन विभाग के पास गए, उन्होंने कहा कि आज इस ब्रह्मपुत्र के किनारे जंगल होता तो ये पशु पक्षी नहीं मरे होते। भारत सरकार के रिकॉर्ड में वहां पर जंगल था, लेकिन जंगल कट चुके थे। वहां पर कोई सुंदरलाल बोगड़ा नहीं जन्म लिया था, वहां कोई चंडी प्रसाद या गौरा देवी नहीं थी, वहां के लोग इतने अवेयर नहीं थे। जंगल कट चुके थे, लगभग 25 किलोमीटर के एरिया तक वो जंगल था, लेकिन जंगल अब नहीं था। फिर मोलाई जाधव को जब वहां के वन विभाग ने अपमानित किया तो इन्होंने खुद ठाना मैं जंगल लगाऊंगा। और बांस की छटाई ऐसी कुछ कला होती है जिससे उस बलुई क्षेत्र पे जंगल लगाया जा सकता है। ये परंपरागत नॉलेज था मोलाई जाधव के पास। मोलाई जाधव ने वहां पर अपने परिवार के साथ जंगल लगाना शुरू किया। आज की तारीख में भारत सरकार के रिकॉर्ड में जहां जंगल होना चाहिए था वो रेगिस्तान है, और जहां रेगिस्तान होना चाहिए था वहां आज जंगल है। क्यों? क्योंकि मोलाई जाधव ने वहां पे तपस्या किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज ये जंगल आजीविका का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, इसका सही जवाब मोलाई जाधव
कि जीवन से हमें मिलता है। आप देखिए कैसे एक एक पेड़ लगाते हैं वो। और 300 हेक्टेयर में अपने बलबूते इन्होंने जंगल लगाया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज सरकार ने इनके इस प्रोजेक्ट को आत्मसात किया और अब वहां पे जंगल दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत एक संस्था है सूर्या फाउंडेशन। इसने देश के अंदर अब इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा फलदार पेड़ लगाए हैं। हमारे देश में वो बॉटल पॉम और कौन कौन से नए रबड़ के पेड़ लगाए जाते हैं जो पत्ते न गिराएं, जो फल ना दें, जिससे गंदगी ना हो, झगड़े ना हो। यूकेलिप्टस के पेड़, ऐसे पेड़ लगाए गए जो पर्यावरण के नुकसान देने वाले थे। सूर्या फाउंडेशन ने प्रयास किया, नहीं, इस देश को नीम, आंवला, शीशम, बरगद, पीपल, अशोक, आम, जामुन के पेड़ की आवश्यकता है। और इन्होंने गांव के लोगों और एक ग्रुप गांव में बनाए जो ये करते हैं CSR के थ्रू। गांव में इन्होंने करीबन 2.5 लाख फलदार पेड़ लगाए। इसके जो चेयरमैन है जयप्रकाश सूर्या जी, इनको भी पद्मश्री आज से 2 साल पहले हम भी जैसे मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश का ही एक उदाहरण दूंगा आपको मैं। आ रहा है, उस गांव में परंपरा है, घर में बच्चा होगा तो 1 पेड़ लगाएंगे, लड़की होगी तो, और लड़की होगी तो उस वृक्ष को बांधती है। ऐसे करके वो गांव बहुत ही सूखा प्रभावित गांव था, आज उस गांव में काफी हरियाली है। तो हम सामने वाले को वृक्ष देते हैं, तुलसी का पौधा देते हैं या कोई फलदार पेड़ का पौधा देते हैं, छोटा सा पौधा देते हैं गमले के अंदर। काम हुए हैं क्या? हम जाते जाते 1 पेड़ खत्म कर देंगे, लेकिन जीवन पूरा बीत गया, 1 पेड़ नहीं लगाए, ऐसा कहने को ना मिले। आने वाली पीढ़ी हमसे, हमारी जनरेशन से ऐसे सवाल ना करे, खड़ी करे, हमारे जनरेशन के सामने ऐसे सवाल ना खड़ी करे। और बहुत सारे विचार है। इस अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूं और आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षा ऋतु आने वाली है, इसका हम लाभ लें। ऐसा नहीं कि 5 जून को ही पेड़ लगाना है, ये पूरा पखवाड़ा सितंबर तक आप पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आराम से खड़ा हो जाता है। तो आप पेड़ जब भी लगाएं तो 6 महीना उसको समय देंगे, ऐसा संकल्प रखेंगे तो पेड़ जरूर लगेगा और पेड़ जरूर खड़ा होगा। और सरकार की भी बहुत सारी संपत्तियां हैं, सड़क का किनारा है, वहां पर भी हम पेड़ लगा सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों ने मुझे ऐसा अवसर दिया और मुझे सुना। इन सब बातों को लेकर के मैं बहुत ही प्रसन्न हूं और
फिर हम इस आभासी दुनिया के बाहर भी मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर सारगर्भित प्रेरक उद्बोधन के लिए। निश्चित रूप से आज की सभा में जुड़े हुए शोधार्थीगण, प्रतिभागीगण सभी एक संकल्प लेंगे कि इस मानसून में, इस वर्षा ऋतु में जो पेड़ लगाए जाएंगे उसका ध्यान रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो सर्वाइव करें, बढ़ें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऋषभ जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या? जी सर। एक दो प्रश्न ले लीजिए। हेलो सर। हेलो। यस सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। भारत के नगरीय क्षेत्रों में, हेलो सर, बोलिए। भारत के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए क्या रणनीति होना चाहिए? क्योंकि हम लोग तो बहुमंजिले मकान में रहते हैं, यहाँ भूमि की कमी है और हम लोग अपने गलियारी में कुछ पौधे लगाकर हम लोग संतोष करते हैं। तो इसके लिए क्या ठोस रणनीति होना चाहिए जो कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से नगरों में पेड़ लगाएं? हेलो सर। सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के प्रोफेसर पांडे सर के ऑडियो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू है सर की तरफ से। 50 लाख वृक्ष लगाए। अब आप बोलेंगे कहाँ पा गए इतना जमीन? पार्क के किनारे होती है, सड़क के किनारे जमीन जगह होती है। और कुछ सरकार की वन आरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये अलग बात है कि वहां पर जंगल नहीं है, वहां पर वृक्ष नहीं है, लेकिन सरकार के डेटा में वहां पर वृक्ष हैं। नहीं लगा सकते हैं। इस घर से गांव और अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप ये संकल्प दीजिए कि जो भी पेड़ मिलेगा उसे सूखने नहीं दूंगा, उसको पानी तो दीजिए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अपने घर ऑफिस से, अपने घर से ऑफिस आते हैं तो देते हैं। ये अपना प्रयास, ये स्वांतः सुखाय का विषय है। मेरा पड़ोसी कर रहा है या नहीं कर रहा है अलग विषय है, मैं करूंगा, ये आत्मप्रेरणा का विषय है। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू दीपनारायण जी, बहुत ही बेस्ट आपने बात कही। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। पंडित जी, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? जी मैडम। मैं बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करना चाहती हूँ, खास करके जो आजकल कॉलोनीज बन रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छा है, उससे फॉरेस्ट्री बोल दिया नॉन सर के क्वेश्चन के बाद। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो हेलो। जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैडम आ रही है। मैं जरा ये जो हमारी अर्बन कॉलोनीज हैं, इनमें जो पेड़ लगाए जाते हैं उसके बारे में आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। होता है ऐसा है कि यहाँ पर जो प्लानर्स हैं वो कोई भी किसी भी टाइप का पेड़ लगा देते हैं और वो पेड़ कई बार इतने हल्के होते हैं कि जैसे आंधी बरसात आए तो कई पेड़ टूट जाते हैं। उनके साथ जो बिजली के खंभे हैं वो भी गिर जाते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि किस टाइप के पेड़ लगाने चाहिए, और एक बार लगा दिया तो वो बढ़ते ही रहते हैं। They never bother to trim them. The result is that they become hazards for disaster. जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हर एक एरिया में एक स्पेसिफिक तरीके से ही डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले जब आंधी तूफान आया था, I had a chance to go towards Connaught Place just yesterday. इतने पेड़ वहां पर गिरे पड़े हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। पहले तो हमने सोचा क्या ये गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटी ने ये पेड़ गिराए हैं, पर उसके बाद लगा नहीं, ये सब पेड़ आंधी तूफान की वजह से गिरे हैं। और यही हालत गुड़गांव में हुई जहां पर कि मैं रह रही हूँ। वहां पर भी ऐसे, जैसे भी थोड़ी भी बरसात आती है
तो कई पेड़ गिर जाते हैं और कई बार वहां पर खड़ी हुई कारें और चलती हुई कारों को और पेडेस्ट्रियंस को भी नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि इस केस में आपका क्या सुझाव है? जी मैडम, पेड़ रख रखाव मांगता है, पेड़ संभाल मांगता है, पेड़ की ट्रिमिंग होनी चाहिए। जो उसकी शाखाएं बड़ी बढ़ जाती हैं, जो उस क्षेत्र का हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है। एक तो ये बात है, मैं उसी पॉइंट को ही एम्फेसाइज कर रही हूँ कि हमने पेड़ तो लगा दिए, उसके बाद उनको मेंटेनेंस नहीं किया, और नेबरहुड भी अगर करना चाहे तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो पूरी लाइन को की देखभाल करें, या कोई ऐसे डेडिकेटेड लोग हों या एनजीओस हैं जिनके बारे में आपने बताया है। ऐसे तो बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो इन केसेस में हाउ डू यू रियली एंश्योर and how do we ensure that the government agencies which have taken the responsibility or private organizations which have taken the responsibilities of developing these colonies, they carry on with the maintenance of the greenery which they have established? जी मैडम, और मैं तो इस बात को जोड़ूंगा, जैसे जेएनयू में तो आप हमारी प्रोफेसर रही हैं, तो जेएनयू में एक बिल्ली को भी अगर आपने डंडा मार दिया या एक कुत्ते को भी डंडा मार दिया तो मेनका गांधी का एनजीओ तुरंत पहुंच जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हमें ऐसे ही और सिविल सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों की जरूरत है, जिसकी इस ऐसे जो जहां पेड़ है, क्योंकि पेड़ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। पेड़ को अनदेखा नहीं करना है, हमारी जनरेशन को पेड़ के साथ एडजस्ट जीना सीखना होगा, पेड़ की का संरक्षण सीखना होगा। क्योंकि ऐसा कुछ हेल्पलाइन नंबर हो, हमने देखा कि पेड़ गिरा हुआ है, झुका हुआ है, जबकि वन विभाग दिल्ली के अंदर जंगल नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही वन विभाग के ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, काम करते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी जानती नहीं है, अपने अधिकारों को नहीं जानती है। तो कहीं ना कहीं हमें केवल सरकार के ऊपर नहीं, ऐसे आपने जो विषय बताया है, ऐसे कुछ जागरूक और युवाओं को आने की जरूरत होगी। और मुझे लगता है कि वृक्षों को लेकर के भी एक मेनका गांधी को जरूरत है इस देश को। देखिए, जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं वहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स ब्रिगेड तो नहीं होता ना, वहां पर तो आप बिल्ली जेएनयू में किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते, कुत्ते भी आपके पास कैंटीन में बैठ करके खाना खाते रहते हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, अगर आप लगाएंगे तो आपकी ही शामत आ जाएगी, ऐसा और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मान लीजिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है कि जब उन्होंने पेड़ लगाए तो पेड़ों का मेंटेनेंस भी देखें, उनका प्रॉपर ट्रिमिंग और ब्रूनिंग जैसे भी होता है, जिस पीरियड में होता है, होना चाहिए। That is not being done. So what I'm saying is, again, I'm coming back to the same position, that we create a facility, but we do not maintain a facility. And this is how we are paying a heavy price for that. Disaster ऐसा हो जाता है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में you have a prestigious position in this university, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि instead of protecting the disaster gets created the moment there is some a little extraordinary moment of the nature. So that is where we have to take care. तो उसी के लिए आपके पास क्या संशोधन है, आपके पास क्या राय है? हाउ आर यू एबल टू brief or sensitize these government officials as to how they should take care? क्योंकि उनका काम है। जी हाँ मैडम, आपने जो कहा, अभी मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों से ही इन्वायरमेंटल स्टडीज एक जरूरी विषय के रूप में या कंपल्सरी विषय के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने अपने जो, या ऐसा कहें कि जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी को स्कूलों में नहीं बताया गया कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ों के साथ जीना सीखिए। कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये उसके लिए जिम्मेदार है।
और एजुकेशन सिस्टम हमारी इतनी कमजोर है या एक मार्गी है, केवल अपना विकास। इस अपने विकास में ना फैमिली है, ना इन्वायरमेंट है, ना सोसाइटी है। तो कहीं ना कहीं आदमी को संवेदनशील बनाना पड़ेगा। और ये वृक्षों को बचाने के लिए हम केवल एक सेगमेंटेड पॉलिसी नहीं बन सकती है, एक हमें समावेशी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें केवल वृक्ष ही ना हो, वृक्ष के साथ साथ परिवार भी हो, परिवार के साथ साथ समाज भी हो। आज आप देखिए, पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है, बेटा कहीं रह रहा है, और कोई भी जनरेशन साथ में नहीं है। तो एक दूसरे को संवेदनशील जो बनाते हैं, मान लिया मैं खूब अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन जो नई जनरेशन है उस जनरेशन को तो मुझे ही संवेदनशील बनाना पड़ेगा। स्कूल में तो केवल नॉलेज ट्रांसफर होता है, ए फॉर एप्पल होता है, यही पढ़ के बच्चा आ जाएगा, लेकिन फादर के साथ रहना होता है, पेड़ को पानी देना होता है, जानवरों को खाना खिलाना होता है या उनका प्रोटेक्शन करना होता है, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। ये सब चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। केवल बच्चा सीखता जानता है, लेकिन वो नंबर पाने के लिए उसके करेक्टर में नहीं आ रहा है। तो जो आपने इशू बताया है, ये इशू बहुत बड़ा संवेदनशील है मैडम, क्योंकि इसमें हमें नई जनरेशन को सेंसिटाइज करना होगा। और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। अब मैं उसका इम्पैक्ट ये देखता हूँ, आज भी हम लोग कहीं चाय पीते हैं, आसपास देखते हैं और फेंक देते हैं कुल्हड़। लेकिन हमारे बच्चे हैं, ये तो टॉफी खाते हैं तो रैपर्स जेब में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल में सिखाया गया। हमारी जनरेशन को स्कूल में नहीं सिखाया गया कि मूंगफली खाने के बाद मूंगफली के छिलके जेब में रखने हैं। लेकिन अभी जो करंट जनरेशन है उसको सिखाया जा रहा है। ऐसे ही हमें नई जनरेशन में ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, ताकि जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला पर्यावरण है, उसको नई जनरेशन ही संभालने वाली है या उसको बचाव करने वाली है। मेरा मैडम ऐसा आइडिया रहेगा। बाकी आपके सामने तो मैडम मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, मैं कहाँ आपको बोल सकता हूँ मैडम। नहीं, धन्यवाद पांडे जी, आपके आइडियाज दे आर रियली सुपर। थैंक यू। आई होप द सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड वी हैव ए बेटर फ्यूचर। जी मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू सुदीश मैजिया मैम, बहुत बधाई आपको, आपने यहाँ पधारा, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और एक क्वेश्चन ले सकते हैं पंडित जी, इसके बाद हमारे स्पीकर के टाइम हो गया है प्रोफेसर पाल के, तो हम और एक क्वेश्चन लेंगे। नॉन वैक्सीनेशन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे हमारी प्रकृति में वृक्षारोपण का विशेष महत्व है और जीवों और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध से संतुलन बनाए रखने के लिए एक सराहनीय पहल भी किया जा रहा है या करते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है सर कि उद्योग और अन्य कारणों से एक पूरे जीव जंतु और पेड़ पौधे या समूल वन की कटाई कर दी जाती है। जैसे अभी तात्कालिक घटना हमारे सामने आया है, हसदेव बचाओ घटना। इसमें लोगों के मन में आक्रोशित है और संकट के बादल छाए हुए हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आवश्यक है सर और वृक्षारोपण भी आवश्यक है। तो इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में कोई सकारात्मक सजेशन देते सर। देखिए, जो भी इंडस्ट्री लगती है, एनजीटी का एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। यदि आप कोई भी ऐसा उपक्रम डेवलप करते हैं तो उसी रेशियो में आपको नए स्थान पर पेड़ लगाना होगा। और हम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस इंडस्ट्री को लगाने वाला, जो सरकारी कर्मचारी वहां पे काम कर रहा है, जो जिसकी जिम्मेदारी है निगरानी करने की,
यदि ये अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे तो संभवतः जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का और इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट के बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, इसमें संतुलन बन पाएगा। और जो व्यक्ति जहां पर है उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। सरकार कानून बना देती है, लेकिन उस कानून ऐसा नहीं हमारे देश में कानून नहीं है, लेकिन कर्तव्य नहीं है। हमें कर्तव्यशील नागरिक रहेंगे तो ऐसी समस्या नहीं रहेगी। और मैं एक बात अक्सर बोला करता हूं, इस सारी समस्या का जड़ जो है ना, हमने एजुकेशन सिस्टम में देखना पड़ेगा। हम इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश संस्कृति भी पढ़ने लगते हैं। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति मत पढ़ाइए, क्योंकि उस भाषा के साथ संस्कृति भी आती है। और उस संस्कृति से क्या है, या तो बच्चा उसी संस्कृति को अच्छे से सीख ले, या अपनी संस्कृति को अच्छे से सीख ले। क्या होता है, ना बच्चा भारतीय संस्कृति का होता है और ना पश्चिमी संस्कृति का होता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, तभी ये समस्या सॉल्व हो पाएगी, ऐसा मैं सोच पाता हूं। और ये डिबेट बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो अब मैं यहाँ के आयोजक जी से बोलूंगा कि अब आप अगले वक्ता की ओर बढ़ें और हम फिर कभी ऐसी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। सो मच सर। लेकिन एक अपने जीवन में एक पेड़ बचाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, ये संकल्प लीजिए, क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार बिना पेड़ के नहीं होगा। तो पेड़ बचाना कर्तव्य समझिए। धन्यवाद। वंडरफुल, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। सनातन धर्म में जो 16 संस्कार हैं, उनमें से बहुत सारे संस्कार प्रकृति के बिना कोई भी संस्कार प्रकृति के बिना संभव नहीं। अंतिम तो आपने बता ही दिया, उसके लिए ही मनुष्य को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए कम से कम। अब मैं अगले क्रम में डॉक्टर तापस पाल सर को आमंत्रित करूंगा। सर अभी रायगंज विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्राइबल एंड कल्चरल जियोग्राफी, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर के पास। सर के अंडर में 10 शोधार्थियों ने पीएचडी कार्य पूर्ण किया है, 4 एमफिल कर चुके हैं बच्चे। सर को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय डॉक्टर तापस पाल सर को आमंत्रित करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। नमस्कार, स्वागत। सर प्लीज sharing the screen, please. सर पहले देखिए, is it visible, sir? Yes, sir. Yes, this way. Okay. At first, I would like to. Am I audible, sir, please? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, Thank you. At first, I would like to give my thanks to this platform and the principal, the organizers, students, scholars, and some eminent professors who are present here, I think. Very much thank you to all. I would like to give some different concept on sustainable development actually. At first, I would like to share that I have already visited United Nations, mainly to get the sustainable knowledge that the United Nations is bearing right now. And after my visit, I realized that all we need to do something different to success the sustainable development.
Then I personally realized that your contributions, our contribution, my contribution, the contribution of I is important here. The contribution of group of people is important here. The contribution of the community is important here. So how we can channelize this contribution? What should be the actual contribution for the nature? What should be the actual contribution for our Mother Earth? Then I realized there should be some different alternative ways that we have to generate in our area, in our locality. Basically, the problem is generating from our personal level. कैसे ये होता है पर्सनल लेवल? मैं एक टूरिस्ट बन के कहीं पे गया, अभी ने सर बोला कि एक वाइस चांसलर सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, जो वो पैकेट था उसने उसको फेंका नहीं है, उसने उसको अपने पॉकेट में रखा। दीपनारायण सर ने भी उसको थोड़ा सा उसको टच किया कि ये 20 साल पहले इसका लर्निंग नहीं हो रहा था, इसका टीचिंग साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा था कि करिकुलम के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम एंड को करिकुलम भी हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन अभी नाउ वी नीड टू रीलर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट हमको ये जो मतलब सॉलिड वेस्ट है, ये जो चॉकलेट का रैपर है पैकेट से, इसको बाहर नहीं फेंकना है, इसको प्रॉपरली एक डस्टबिन में फेंकना है। मतलब जितना भी प्रॉब्लम से ये लोग, अगर हम इंडिविजुअली सबको देखें कि इंडिविजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी खुद के कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एट फर्स्ट वी हैव टू फाइनलाइज दैट, ऑल वी नीड टू गिव आवर ओन कंट्रीब्यूशन। अगर हम सब लोगों को अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दे, एक एक का कंट्रीब्यूशन जुड़ने से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे तमिलनाडु का जो रिस्पेक्टेड वो लेडी थे कि उसने एक एक पेड़ लगाए अपने रास्ते में और एक एक करके करते वो 1 करोड़ करोड़ हो गया। वैसे ही हमारे हर घर में अगर हम सब बच्चे, हम सब टीचर्स, हम सब पॉलिटिशियंस, हम सब एकेडमिशियंस अगर खुद का कंट्रीब्यूशन अगर पहले सोचे, हर टाइम हम क्या करते हैं कि तुमने इसको पॉल्यूशन किया, तुमने एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड किया, एक कंट्री दूसरे कंट्री को बोलते हैं तुम लोग ज्यादा पॉल्यूशन करते हो। तो भाई तुम लोग अगर ज्यादा पॉल्यूशन करते हो तो तुम जो बोल रहा है जो कंट्री, वो भी तो पॉल्यूशन कर रहा है, वो खुद ही तो उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग पॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में ही छुपा हुआ है कि तुम लोग ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, मतलब हम लोग तुमसे कम कर रहे हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो पहले इसको हम लोगों को डिडक्ट करना है, कार्टेल करना है, रिस्ट्रेन करना है। देन व्हाट शुड बी द मेथड एंड अल्टरनेटिव वे टू रिस्ट्रेन टू और टू कार्टेल और टू रिड्यूस और डिडक्ट द टोटल रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट all we are going, all we are following in our life. तो इसीलिए मैंने I realized in my personal life that I have to at first I have to do something. Then my scholars, then my students, then my associates, then my neighbors, then my family members can follow my environmental vista or the environmental thought. हम सब लोग environmental thoughts पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, environmental studies सब किताब में पढ़ते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कितने लोग करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16, ऑल यू नो दैट द पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो मैं अभी खुद में मैं ये सोचता हूँ कि एक ये पीस चाहिए या अप्लाइड पीस चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा? क्या अच्छे मार्क्स 99% मार्क्स से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनता है? क्या पूरा स्काई स्क्रैपर्स G+10 बिल्डिंग से कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनता है? अगर वो यूनिवर्सिटी में, अगर वो कॉलेज में, अगर वो फैमिली में, अगर वो कम्युनिटी में, अगर वो सोसाइटी में वो अप्लाइड पीस ना हो, वो वैल्यू ना हो, एथिक्स ना हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल थिंकिंग ना हो, अगर क्लाइमेट फिलोसफी ना हो, तो वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो स्कूल कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा इस एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में? That's why I generated and still now I am following the concept of sustainable thinking.
मैंने इतना सारा एक स्लाइड के ऊपर आप लोगों को इसलिए बोला क्योंकि आई वुड लाइक टू layering the concept of sustainable thinking which can be nourished and furnished from our areas, from our bedroom, from our office room, from our locality. All you know that local people are the main factor to generate the concept of global concept. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले लोकल पीपल को ये सस्टेनेबल थिंकिंग करना है। मैं कैसे मैं एक प्लास्टिक को बाहर फेंकूं, या मैं प्लास्टिक ना यूज करके दूसरा कुछ जूट बैग यूज करूं, या एक प्लास्टिक मेरे घर में आ जाने के बाद उस प्लास्टिक को मैं 2 टाइम्स यूज करूं या 3 टाइम्स यूज करूं, या प्लास्टिक को ही मैं छोड़ दूं, ये सब खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे आप बिहेव करेंगे, जैसे हम बिहेव करेंगे, हमारा स्टूडेंट्स लोग वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि बिकॉज दे आर फॉलोइंग अस। आपका बच्चा, मेरा बच्चा वैसा ही फॉलो करेगा जैसे उसका फादर, उसका मदर, उसका ग्रैंडफादर, जैसे उसका फैमिली में एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करेगा। So that's why the concept of sustainable thinking should be generated from our level. That's why I have given this concept sustainable thinking to challenge the climate crisis. Of course, we are not following the climate changes. We are experiencing climate crisis because this climate crisis are the main factor to generate the climate changes. Now the next slide, जो मैंने अभी अब तक बोल दिया कि we have to realize our thought. You have to realize your thought. You have to think about our Panchabhut. We are not thinking about Panchabhut. Khiti of Tej Marut Bom. We are not following these 5 primordial things. That's why we need the youth motivation. If you want to motivate the youth concept, the youth generation's concept, then you need to apply the sustainable thinking, which is connected with our sustainable development concept. And if you ask me that, can you give me one example that our sagacious persons, our ancient sagacious persons, or Nobel laureate persons have followed this type of concept? Yes, of course. Rabindranath Tagore, the first Nobel laureate of India, once he started this concept, tree plantation in name of Varsha Mongol. In name of Varsha Mongol. So that the term Varsha Mongol, the festival which is nourished in Shantiniketan or Vishwabhyalaya area, is an example of sustainable thinking. And also worshipping of Panchabhut. This concept, it's a concept of sustainable thinking which is nourished in present or contemporary Shantiniketan or Vishwabhyalaya Central University in Birbhum of West Bengal. Worshipping of Panchabhut. Yes, ये Panchabhut worshipping, Panchabhut के तरफ पे जो रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट को स्टूडेंट्स लोगों के अंदर, टीचर्स लोग और जो ऑथोरिटी है, ये जनरेट करता है। इससे क्या होता है? I have spent my 16 years Shantiniketan. That's why I personally feel that what I have to do for environment, because हमारा एजुकेशन जो है उस सिस्टम में थोड़ा को करिकुलम एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में एनवायरमेंटल एक्टिविटीज लाना चाहिए। और हम लोगों को एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड नेचर। यही तो हम लोगों का प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा जो प्रोग्रेस होगा, ये जो स्लाइड्स आपको हम दिखाएंगे कि हमारे इधर, हमारे लोकेलिटी में, जो हमारे एस्टेट्स में हम लोगों का एकेडमिशियन स्टूडेंट्स लोग कैसे एनवायरमेंटल डे ये लोग हर दिन पालन करता है। ऐसा नहीं कि 5 जून आने से हम लोग एनवायरमेंटल डे पालन करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग अपना लाइफ में हर दिन वी आर ट्राइंग टू फॉलोइंग द एनवायरमेंटल डे। और वो कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, कैसे हमारे स्टूडेंट्स लोग वो करते हैं, हमारे स्कॉलर्स लोग करते हैं, हमारा एकेडमिक फ्रेंड्स लोग करते हैं, पॉलिटिशियन लोग भी हम लोग वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट द एनवायरमेंटल थॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। हम लोग एकेडमिशियंस है, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग होता है, ये पॉलिटिशियन लोग सामने चला जाता है। लेकिन इन लोगों का ऐसे इतना एक्सपीरियंस कैसे है? सबका नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है उसी में परसेंटेज ज्यादा है कि इन लोग का एनवायरमेंटल जो थॉट से ये थोड़ा कमजोर है, ये मैं मानता हूँ। तो क्या करना है? किसका कमजोर है, किसी के एनवायरमेंटल थॉट अगर कम है,
तो क्या हम उसको दोषारोप करें? क्या हम गवर्नमेंट को हर वक्त बोले कि आप लोग ये नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे? नो, दैट्स नॉट द वे टू मैनेज एनीथिंग. We have to channelize our thought. We have to provide our environmental thought to everybody, whether they are politicians, whether they are students, whether they are academicians, whether they are any other person. So next, Bashamangal festival, which is nourished in Tagore's Shantiniketan, it's an example of sustainable thinking. Now, I would like to share that the problems. What are the basic problems? क्यों मैं ये सस्टेनेबल थिंकिंग आप लोगों के सामने आ लाया? देखिए, जब अभी क्लाइमेट लीडर्स बहुत आ गया हम लोगों के अंदर, क्लाइमेट सोल्जर्स हम लोगों को डिमांडेड है. जब मैं ब्राजील में गया था, अमेज़न पे गया था, मैं वहां पे रेड फॉरेस्ट में गया था, वहां पे जाके मैंने देखा, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉन्डोनिया में मैंने जाके देखा कि वहां पे स्टूडेंट्स लोग, जो स्कॉलर्स थे, वो लोग एक डैमी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जहां पे बहुत सारे एनिमल्स का जो रेप्लिका है वो लोग बनाते हैं. वो रेप्लिका को लेके रास्ते के साइड में वो लोग जाके वहां पे स्टूडेंट लोगों को या जो स्ट्रीट पीपल है उन लोगों के सामने वो लोग एक स्ट्रीट ड्रामा करते हैं कि अगर ये सारे एनिमल्स, ये अमेज़न के एनिमल्स मर जाएगा तो ये हमारे जो एनवायरमेंट का ही वो प्रॉब्लम जनरेट होगा. दिस टाइप ऑफ program of environmental consciousness that is performing by the scholars and students of University of Rwandaria. मैंने खुद ये जाके देखा है कि वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं. अगर आप जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो देखिए आपके सामने है कि कैसे ये हम लोगों का टीन एज पीपल, यंग पीपल, क्लाइमेट सोल्जर्स, they are doing such type of activities, they are doing such type of street drama to aware the local people कि अगर ये एनवायरमेंट, अगर ये क्लाइमेट इतना चेंजेस हो रहा है, इतना क्राइसिस हो रहा है, तो इस किसके कारण हो रहा है? हम लोगों के ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है. द कॉज इज हिडन इन आवर ऑब्नॉक्सियस एक्टिविटीज व्हिच इज नॉट फॉलो द एनवायरमेंटल पथ. Another thinking, the concept is climate philosophy. We are not knowing realizing the importance of climate philosophy. एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है, बट वहां पे सिर्फ नंबर के लिए आते हैं. टीचर्स भी दे देते हैं और स्टूडेंट्स लोग भी थोड़ा सा पढ़ के वो मल्टीपल चॉइस दे के लिख के चला जाता है. सब प्लेस में नहीं होता है, लेकिन होता है. ये रियल एक्सपीरियंस है. और ये टीचर्स लोग है या अदर्स लोग है, ये नहीं बोलेगा, लेकिन यही है हमारा सस्टेनेबल थिंकिंग कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं उसको हम लोगों को ब्रेक के साथ हम लोगों को बोलना चाहिए. उसी से तो हम लोगों का कॉन्शियस जनरेट होगा. तो नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में भी ऐसे हो रहा है कि दे वांट टू सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट चेंजेस, दे वांट टू प्रोटेक्ट द कोस्टल इरोजन एंड डूइंग लॉट ऑफ स्ट्रीट एक्टिविटीज, स्ट्रीट ड्रामा टू मेक अवेयरनेस, टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द लोकल पीपल. एक चीज आप लोगों को भी मालूम है कि जकार्ता इज बीइंग ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स द कालीमटन सैक्रेड फॉरेस्ट. अगर यही होगा कि एक ऑल यू नो दैट अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग, तो एवरी टाउन हैज इट्स कैपेसिटी, एवरी पीपल हैज हिज और हर कैपेसिटी. ये कैपेसिटी जो बिल्डिंग है ये टाउन का भी होता है, ये सिटी का भी होता है, लेकिन हम लोग ये सिर्फ इंसान का कैपेसिटी मेजर करते हैं. तो एक टाउन का कैपेसिटी क्या होता है? उसका जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उसका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसका लैंड एरिया सप्लाई, उसका बिल्डिंग एरिया सप्लाई, उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी, ये सब लेके एक टाउन का खुद का कैपेसिटी होता है. जब उस टाउन का खुद का कैपेसिटी कोलैप्स हो जाता है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि इस टाउन का सारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म हो गया, अब इस टाउन को एक डेड सिटी बना दो और जाके तुम एक फॉरेस्ट को कैप्चर करो. और ये फॉरेस्ट का नाम है कालीमटन. ये कालीमटन फॉरेस्ट इंडोनेशिया में है और इसको कैप्चर करो और इसमें एक न्यूली फिर से एक अर्बन बना दो. दैट इज नॉट द वे टू जनरेट, टू मैनेज द अर्बन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ये एक मैनेजमेंट का वे है. बिकॉज सैक्रेड फॉरेस्ट, आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी ऑन सैक्रेड फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल.
That's why I covered 6,666 kilometers of West Bengal with the help of my bikes. I will give that photograph. I will show that photograph. अगर हम लोग सैक्रेड ग्रुप्स को उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सैक्रेड ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एनवायरमेंटल पर्पस, तो अनदर कंट्री में ये सैक्रेड फॉरेस्ट लाइक कालीमटन वही वो लोग खत्म करना चाहते हैं. तो वेदर इज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मुझे तो नहीं लगता कि ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस है. अभी देखिए मैं आपके सामने अभी जो प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम आपके सामने मैं जनरेट करूंगा कि अभी कहां पे हम लोग आ गए जहां पे एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द प्लास्टिक्स. वी हैव मेड आवर लाइफ लाइक अ प्लास्टिक लाइफ. कहीं पे भी जाओ, कुछ भी जाओ, सब में प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, और सभी बोल रहा है कि प्लास्टिक बैन करना है. कैसे बैन करेंगे यार? ये प्लास्टिक को हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर इस प्लास्टिक को हम लोग ठीक से मैनेज भी नहीं कर रहे हैं और उसको इधर उधर फेंकते हैं. हमने जब मध्य प्रदेश में गया था, एक नेशनल पार्क में गया था, वहां पे जाके हमने ये फोटोग्राफ लिया. 10 साल पहले का फोटोग्राफ है, तो हमने वहीं पे तक हमने उस फोटोग्राफ को लिया. हम आई वुड लाइक टू शेयर दिस फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू टू शेयर द माइंड ऑफ मॉडर्न पीपल. ये मॉडर्न पीपल जो हो रहा है, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द यूजिंग टू मैनेज द प्रॉब्लम्स. तो अभी देखिए इंसान के संसार छोड़ के अभी एनिमल्स के संसार में भी ये प्लास्टिक जा रहा है. और देखिए ये पोस्टर हमने लोकल एरिया से हमने कलेक्ट किया. ये जो बिस्लरी का एड है, यहाँ पे देखिए ये कैमल के मुंह पे एक प्लास्टिक का बोतल घुसा के उसको एडवर्टाइजमेंट बना रहा है. आप सोचिए, तो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन तो लेते हैं किताब से, इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हम लोग लेते हैं बाहर से. तो अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम देखें कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, घूम रहा है, और वो देख रहा है कि अरे एक ऊंट भी, वो भी बिस्लरी का बोतल पी रहा है, तो सोचिए ना उसका दिमाग में, वो छोटे दिमाग में कम उम्र से उसका फिलोसफी कैसे एनवायरमेंटल फिलोसफी, क्लाइमेट फिलोसफी हो सकता है. अगर वो बच्चा एक उसका उतना उम्र से वो देख रहा है कि एनिमल्स आर कनेक्टेड विद प्लास्टिक्स लाइक ह्यूमन, उसके दिमाग में आप कैसे एनवायरमेंटल फिलोसफी, क्लाइमेट फिलोसफी, सस्टेनेबल थिंकिंग कैसे हम लोग जनरेट करें? दैट्स व्हाई आई हैव जनरेटेड द कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल थिंकिंग, कि हम सबको अपने अपने लेवल पे क्लाइमेट सस्टेनेबल थिंकिंग को पहले जनरेट करना है. व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू. तो यही है कि हमने ये पोस्टर को लिया. अभी अगर ये पोस्टर के हिसाब से हम लोग जाएंगे कोर्ट में, तो हो सकता है हम लोग कोई नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, दे आर फॉलोइंग द सेमासियोलॉजी. बातों के उलझन में हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, लेकिन इतना बातों में के उलझन में हम लोगों को नहीं जाना है. हम लोगों को काम करके दिखाना है कि बीइंग एन एकेडमिशियन, बीइंग ए प्रोफेसर, आई एम अपोजिंग दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मैं खुद अभी 200 पीपल के सामने ये बोल रहा हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट इको फ्रेंडली एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसको नहीं यूज करना चाहिए. ये हमारे सोसाइटी में दूसरा एडवर्टाइजमेंट यूज करो भाई. अभी देखिए, जब मैं बांग्लादेश में गया, ढाका टाउन में, सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में गया, मैं देखा इतना दिन हम लोग जो फल खरीदते थे, जो फ्रूट्स खरीदते थे, वो उसको ऐसे ही खरीदते थे. अभी देखिए एक एक फ्रूट को एक एक प्लास्टिक में घुसा के उसको बिक रहा है. अभी हम मिठाई खाते थे इतना दिन, अभी हम देखें कि मिठाई तो, अरे वो एक छोटा सा मिठाई उसको भी प्लास्टिक रैपिंग करके उसको एस्थेटिक प्रेजेंटेशन कर रहा है. अभी द स्वीट शॉप्स दे आर थिंकिंग दैट इट कैन इंक्रीज द एस्थेटिक सेल्स of the customer, to attract the customer, they are presenting their selling items in this way. But whether is an example of sustainable thinking, अगर ये क्या इंसान के दिमाग में कोई सस्टेनेबल थिंकिंग जनरेट करेगा? कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एजेंडा जो राष्ट्रपुंज ने 2015 में जनरेट किया है, क्या कभी ये सक्सेसफुल होगा? अगर एक बच्चे को लेके हम दुकान पे जाएंगे, चलो बच्चा एक साथ हम थोड़ा सा मिठाई खरीद के लाते, फ्रूट्स खरीद के लाते, वो बच्चा 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से वो क्या देखेगा? अरे ये वर्ल्ड इज, ये प्लास्टिक कैन हाईलाइट योर टेस्टीज. मैं आपको बोल रहा हूँ पर्सनली, जब मैं ब्राजील में रोंडोनिया स्टेट में फिल्म का जो इंस्टीट्यूट था, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, आप लोग जानते हैं कि वहां पे जाने से ही आपको पहले ये लोग प्लास्टिक का बोतल ये तो देता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन वो एक
इमर्जेंट एरिया का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो वहां पे मैं देखा, जबकि हॉस्पिटलिटी में फास्ट ही एक प्लास्टिक का बोतल आपको दे रहा है, छोटा छोटा प्लास्टिक का बोतल। सिटी में अभी आपको मालूम है 2 लीटर का प्लास्टिक बोतल से नीचे आपको कोई प्लास्टिक बोतल नहीं मिलेगा। ये अच्छा प्लानिंग है कि थोड़ा थोड़ा करके हमको मिनिमाइज करना है नॉन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को। तो मैंने उन लोगों को पूछा, आस्क किया कि व्हाई दे आर गिविंग मी द ड्रिंकिंग वाटर इन ए प्लास्टिक बोतल और इन ए प्लास्टिक कप। उन लोगों ने हमको बोला कि दिस इज द पीपल ऑफ द रॉन्डोनिया स्टेट, they feel that if I am giving you water within a plastic bottle, that can increase our aesthetic sense or that can increase our prestige. प्लास्टिक यूज करना एक प्रेस्टीज है उन लोगों के लिए। अभी इतना दिन उन लोग इतना उस साइड थोड़ा अमेजन का वो सबसे ज्यादा अमेजन रेन फॉरेस्ट ये रॉन्डोनिया स्टेट में ही है और वो थोड़ा सा मतलब डेवलपिंग के प्रोसेस में जा रहा है, उतना डेवलप है नहीं उस साइड में, वेस्टर्न अमेजन जो है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ का भी अर्बनाइजेशन मतलब वो 40 साल का कुछ अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने बोला कि ये हम लोग अभी प्रेस्टीज समझते हैं कि अगर प्लास्टिक का कैरी बैग यूज करेंगे, प्लास्टिक का में कुछ लेके जाएंगे तो हम लोग थोड़ा ग्लोबलाइज हो गए, हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइज हो गए। तो मैंने वो सुन के मैंने रियलाइज किया ये कैसा वर्ल्ड बन रहा है। फिर मैंने बोलपुर में शांति निकेतन में एक दुकान में मैंने गया था कि एक मील खरीदने के लिए, तो भैया मुझे एक मील दो। तो आप सोचिए मुझे एक पर्सन का एक मील दिया, तो सोचिए ये मील का ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। अगर एक पर्सन को एक मील के लिए एक दोपहर का खाना दे रहा है एक पर्सन को, ऐसे इतना सारे प्लास्टिक को डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रहा है, तो कैसे हम लोग वर्ल्ड को प्लास्टिक फ्री बनाएंगे, कैसे हम लोग एनवायरमेंट डे बनाएंगे। ये एनवायरमेंट डे बनाने से क्या फायदा होगा हम लोगों को, अगर हम लोग अपने एक पर्सन के लिए ऐसे खरीद के हम लोग प्लास्टिक खरीद रहे हैं। क्योंकि कोई तो बिजनेसमैन फ्री में आपको कुछ नहीं देगा, गिफ्ट नाम का कुछ चीज होता नहीं है बिजनेस में। तो दैट्स व्हाई I would like to earring the process sustainable thinking कि अगर आपको ऐसे मील लेना है, मैं पर्सनली आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि सर क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में ये सब कुछ फॉलो करते हैं, आप तो इतना बड़ा बड़ा बातें बोल रहे हैं। यस, मैं फॉलो करता हूँ। जितना भी मेरे घर में और या मेरे ऑफिस में जितना भी ऐसे पैकेज आता है, ऐसे प्लास्टिक में हम लोग लेते नहीं है। हम लोग अपने खुद का कागज, खुद का ऐसे जो कंटेनर है हम लोग बिहार के दुकान को भी बेचते हैं कि ये इसको साफ करके ले जाओ और इसमें इसको लेके आओ। इससे क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को माइंड में ना वो थोड़ा जनरेट होता है कि हमारे साथ तो ये नहीं कर रहे, हम क्यों करें। तो आपको देख के ना वो लोग सीखेगा। तो पहले यू हैव नीड टू चेंज योर बिहेवियर। आई एम नीड टू चेंज माई बिहेवियर। अगर हम खुद का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास ऐसे भी हमने रियलाइज किया कि जितने सारे पॉन्ड्स है, ये पॉन्ड हम लोग उसको बुझा रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो एकदम फ्रेश पानी यूज करके। आप पूछेंगे तो आपका बिल्डिंग कैसे बनाया, क्या फ्रेश पानी यूज नहीं किया? हाँ, हमने यूज किया, किंतु उसको बहुत कम मिनिमाइज किया। कैसे किया? जब भी रेन होता था बिल्डिंग के टाइप पे, हम उसको स्टोर करते थे बहुत सारे प्लेस में, फिर वो स्टोर्ड वाटर हम यूज करते थे। हम उसका भी हमारे पास प्रूफ है, हम दे सकते हैं आपको। हम अपने जो घर पर बना रहे थे, आप हमको खुद ही देख सकते हो कि मैं क्यों ये फोटोग्राफ किया। मैं जो हमारे लेबर लोग था, हमने उसको बोला भैया आप थोड़ा सा मुझे दो, तो हम 2-3 कुदाल उसको चलाएंगे। उसने बोला क्यों? हमने बोला कि अरे भाई यही तो हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते कि लेबर ही सब कुछ करेगा, लेबर हम प्रोफेसर है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको भी कुछ करना है। हर प्रोफेसर को इंडिया में एक फार्मर बनना है पहले, और वो बायो फार्मिंग करना है। हर प्रोफेसर को करना है, हर डॉक्टर को करना है, क्योंकि हम लोग सब लैंड ग्रैब कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये फूड प्रोडक्शन तो नहीं होगा। अगर फूड प्रोडक्शन ही नहीं होगा तब क्या करेंगे? पॉपुलेशन तो इंक्रीजिंग होते ही रहेगा। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तब मैंने आपको मैं ये फोटोग्राफ में क्या दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए कि थोड़ा सा 1-2 मीटर भी हमने नहीं खोदा अपने घर बनाने के लिए, और उसमें देखिए कितने सारे प्लास्टिक हमको निकल रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट द imprint of modernization, the imprint of plastics। अगर सॉइल में इतना ज्यादा प्लास्टिक्स है तो इसमें एग्रीकल्चर कैसे होगा?
इसमें इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा, इसमें पार्कुलेशन कैसे होगा, इसमें डीप पार्कुलेशन कैसे होगा, ग्राउंड वाटर कैसे जनरेट होगा। जब मैं ढाका में गया, वहां पे शिवबाड़ी काली मंदिर अभिषेक इलाका, ये अभिषेक इलाका है अब ढाका शिवबाड़ी एरिया ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी, नया ढाका यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पे जाके ये फोटोग्राफ किया। वन ऑफ माय रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम यूएसए, he is residing at USA, but his ancestral home is present right now in Dhaka. So that's why during that time he has told me that sir, यहाँ पे एक टाइम पे पॉन्ड था, हमने बोला पॉन्ड था और यहाँ पे इतना बड़ा स्काई स्कॉपर्स बिल्डिंग। तो हमने उसी टाइम पे इसका फोटोग्राफ ले लिया कि जब भी हम किसी पे लेक्चर देंगे तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो हमने देखा जहाँ पे पॉन्ड था इतना बड़ा, नया ढाका यूनिवर्सिटी, वहां पे इतना बड़ा बिल्डिंग। तो क्या अगर तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आप सबको मालूम है कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में डायरेक्ट इस टाइप की एक्टिविटीज इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये फोटोग्राफ भी हमने बोलपुर में लिया, तो हम ह्यूमन वाले क्या कैसे इसको पूरा प्लास्टिक गार्बेज सॉलिड वेस्ट देके पॉन्ड को ही हमने उसको फिनिश कर दिया। तो कैसे हमारा सस्टेनेबल एक्टिविटीज होगा, कैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा इफ वी आर नॉट फॉलोइंग आवर सस्टेनेबल थिंकिंग। अगर हम अपने कर्मों में सस्टेनेबल वर्क नहीं कर सकते तो सस्टेनेबल जनरेट कैसे होगा। अगर आप लोगों के पास सर जी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम होगा तो प्लीज आप मुझे बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स बहुत सारे हैं। नहीं सर, टाइम है, कंटिन्यू सर। वेरी नाइस सर, आपको इंटरनेट वगैरह से फोटोग्राफ्स या एक्टिविटीज नहीं मिलेगा। ये हमारा उत्तर दिनाजपुर में रायगंज टाउन पे और शांति निकेतन में, जहाँ पर भी हमारा जितना भी हमारा कम्युनिटी और स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, जो भी काम हम बंगाल में कर रहे हैं वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो इतने सारे स्टूडेंट्स अभी हैं यहाँ पे, उन लोगों को थोड़ा सा अगर उसका माइंड में सस्टेनेबल थिंकिंग घुस जाए तो वही हमारा सक्सेस होगा। अगर हम 30 मिनट्स यहाँ पे बक कर रहे हैं तो अभी खुद के लाइफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बंगाली लैंग्वेज पे है, मैं इसको बोल देता हूँ ट्रांसलेट में। ये नंदनकानन प्रकल्प है। ये नंदनकानन प्रकल्प इसका नाम इसलिए है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जोरासाको में जो घर है वहां पे प्लीज हेलो ओके एम आई ऑडिबल सर? Yes, continue. Please, thank you. Nandankanan प्रकल्प, I have started another thinking, another project, that is Nandankanan प्रकल्प। अगर आपके मैरिज हो रहा है, आपके शादी हो रहा है या आपका एनिवर्सरी हो रहा है, तो सिर्फ खाना पीना करके धूमधाम करके फ्रेंड्स लोग लाके 2-3 लाख खर्चा करके उसमें क्या आपका पीस मिलेगा भाई? उसका फैमिली पीस मिलता है, लेकिन एनवायरमेंटल पीस कहाँ पे मिलेगा? योर एक्टिविटीज फॉर एनवायरमेंट क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं हम? तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक करते जितना भी एनिवर्सरी होगा हम और हमारे एसोसिएट्स में हम उसको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आप इस हर एनिवर्सरी में आप खाओ, गाना करो, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन भाई 2 हस्बैंड और वाइफ के नाम पे एक करके वृक्ष लगाओ। अगर आप अर्बन एरिया पे रहते हैं तो यू कैन प्रिपेयर अर्बन ग्रीन। आप अपने जो रूफ है उसको यूज करो। तो विवाह वृक्ष जो है ये एक कैची कैप्शन हमने दिया कि जितना भी हमारे एसोसिएट्स है दे आर फॉलोइंग दिस विवाह वृक्ष इन देयर एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। तो ऐसे प्रकल्प और भी है, मैं इसको भी आपको दिखाना चाहता हूँ। Another concept that I have started at my local area, that is lockdown for climate। देखिए इस लॉकडाउन फॉर क्लाइमेट during our excursion, actually I have used this type of concept because वहीं पे हमारा सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होता है। उससे क्या होता है, एक साथ में 50, 60, 80 पीपल्स को अवेयर कर सकता हूँ। जहां पर भी एक मतलब पीपल गैदरिंग होगा उस एरिया में आपका एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करने से ज्यादा फायदा हो सकता है हम लोगों को। तो जब हम लोग स्टूडेंट्स लोग जब हम स्टडी के लिए गए तो हम ये लॉकडाउन फॉर क्लाइमेट हम चाहते हैं कि हर साल जैसे ये दिवस मनाया जाते हैं तो हर साल एक वीक सिर्फ लॉकडाउन फॉर क्लाइमेट के लिए बनाइए। क्लाइमेट के लिए एक हफ्ते आप कोई भी क्लाइमेट अगेंस्ट का काम मत कीजिए। थोड़ा सा तो आपका कंट्रीब्यूशन काम पे आएगा, थोड़ा सा तो हम इस आर्ट को 2 दिन उसका जो लाइफ है वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं
हम चाहते ऐसे नहीं कि आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट दैट लॉकडाउन फॉर क्लाइमेट एंड ऑलरेडी सेंड द लेटर टू यूनाइटेड स्टेट्स द सेक्रेटरी ऑफ द राष्ट्रपुंज that to started that this type of concept that is lockdown for climate. मैं आपको एक अलग चीज दिखाना चाहता हूँ, ये भी देखिए आप लोग। मैं पहले बोल देता हूँ ये क्या है कि हम लोग जब स्टडी टूर जाते हैं तब हर स्टडी टूर में 5, 6, 7, 8 इसमें व्हीकल रहता है। तो ये जो व्हीकल है तो स्टूडेंट लोगों को एक्सेसिबिलिटी के लिए उस व्हीकल का एक नाम देना पड़ता है, या कुछ कार्ड या कुछ आइडेंटिटी प्रूफ इसको देना पड़ता है कि तुम उस गाड़ी में जाके बैठो। क्यों हम अपने बातों को थोड़ा चेंज करके हम ये नहीं बोल सकते तुम जाके जिस गाड़ी का नाम अरण्य है, जिस गाड़ी का नाम जल है, जिस गाड़ी का नाम ऑक्सीजन है, उस गाड़ी में जाके बैठो। इससे क्या होता है, ये जो स्टूडेंट का मेरा दिमाग है उसमें थोड़ा एनवायरमेंटल टर्म्स उन लोगों के अंदर घुस जाता है कि सर एनवायरमेंटल जो नेम है इसको एक गाड़ी का नाम दिया। आप देखिए ये भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए इस गाड़ी का नाम है अरण्य, फॉरेस्ट। ये बंगाली में लिखा है क्योंकि हमारे सब सारे, इस गाड़ी का नाम है माटी, सॉइल। तो सॉइल जो है इसका नाम है आकाश। इस गाड़ी का नाम है हिमवाह, ग्लेशियर। इस गाड़ी का नाम है पक्षी, बर्ड। इस गाड़ी का नाम है ऑक्सीजन। तो क्या मैंने दिखाया कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल परसेप्शन अगर जनरेट करना है तो एनवायरमेंटल टर्म्स और एनवायरमेंट पंचभूत का नाम ये आप लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों के सामने इसको बार बार लाना है। इससे क्या होता है, उन लोगों का माइंड उसमें एक एनवायरमेंटल अट्रैक्शन वो स्टार्ट हो जाता है माइंड में। अभी आप लोगों के सामने हमने अलग एग्जाम्पल रखा है। जब भी हम यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम करते हैं तो हम जो होता है ना, जो प्लास्टिक बोतल हर टेबल के ऊपर गेस्ट के लिए डाइस में रखते हैं। तो मैंने सोचा कि we should not follow this type of plastic bottles in front of the guest, in front of all the guests. तो मैंने क्या सोचा कि अल्टरनेटिव कुछ करते हैं। तो मैंने नो प्लास्टिक बॉटल्स इन डायस, मैंने ये एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्टर सर, ये सब लोग इस फोटोग्राफ में है। तो जब ये थोड़ा दिन पहले हम लोगों का फोटोग्राफ हुआ, तो उनको पानी पीना है ना, वो तो पूरा बोतल पानी नहीं पिएगा, वो थोड़ा सा पिएगा अगर उनको पीना है। तो अगर उनको जितना पीना है उतना ही हम उसमें रखें। और ये जितने सारे डाइस में हम लोगों का जो गेस्ट है, जो ऑनरेबल पर्सन होगा, अगर वहां पे हम लोग ये प्लास्टिक बोतल्स ना लाए, हम कोई आर्देन, कोई मिट्टी का कोई हम लोग ग्लास लाए, इससे क्या होगा, एक तो इसमें एनवायरमेंटल कल्चर भी होगा, एक प्लास्टिक बोतल्स भी नहीं होगा। और ये जो पॉटरी इंडस्ट्री है जो अभी खत्म हो रहा है वर्ल्ड पे, तो जितने सारे पॉटर्स है जो पॉटरी इंडस्ट्री में बिलोंग है, उसका फैमिली, उसका इनकम, उनका भी तो थोड़ा सा अर्निंग हो जाएगा। ये भी तो एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी है। और इसमें आपको इकोनॉमिक जो है, जो पॉटर्स लोगों का, उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ये भी एक सस्टेनेबल थिंकिंग है मेरे हिसाब से। जो लॉकडाउन फॉर क्लाइमेट है, जब हम लोग सेमिनार्स करते हैं, जो उसका जो टेंट बनाते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, तो वहीं पे सब लोग क्यों जाते हैं। तो वहाँ पे आपको लंच कूपन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सेमिनार का किट्स मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा। तो सर ये सेमिनार का बैग, किट्स, लंच कूपन और टिफिन, ये सब के लिए सेमिनार नहीं होता है। हम सोचते हैं कि अगर ये इसको यूज करना है, वो जहाँ पे आएगा ये सब लेने के लिए, वहां पे आके उसका दिमाग में हम कुछ घुसाते हैं। क्या घुसाना है हमको, एनवायरमेंटल थॉट्स घुसाना है, सस्टेनेबल थिंक उसमें हमको पेनिट्रेट करना है। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द नेम ऑफ दिस स्टॉल, रजिस्ट्रेशन काउंटर लॉकडाउन फॉर क्लाइमेट। ऐसे ही जितने सारे हमारे जो ऑफिस है हमारे यूनिवर्सिटी में या हमारा घर में, हम जहीं पे भी इसको घर में एक ग्रीन ऑफिस रूम बनाना चाहते हैं, और हमने बनाए, और उसी ऑफिस रूम में अभी बैठे भी है हम। तो जब हमारे घर में कोई, हमारे ऑफिस में कोई बाहर से हमारे दोस्त लोग आता है, स्टूडेंट्स लोग आता है, कोई भी आता है इंटरेक्शन के लिए, वो सिर्फ हमसे बातें करेंगे। क्यों? वो आके उसको एक ग्रीन एनवायरमेंटल थॉट भी उसको सोचना है, हम उसको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। जब एक इंसान बार बार एक ऐसे ही सस्टेनेबल थिंकिंग का कोई एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनको भी सोचेगा अरे मैं भी कैसे कर सकता हूँ, मेरे रूम में भी तो ये अच्छा लगेगा, और ये हमारे लिए भी, हेल्थ के लिए भी तो अच्छा है। जो इंडोर प्लांट्स होता है वो भी तो अच्छा होता है।
तो ऐसे ही हमने अपने ऑफिस रूम पे भी ऐसे ही एक्टिविटीज किया है। फिर आपको हम और एक एग्जांपल देते हैं, ये बंगाली में है लेकिन हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे एक टॉपिक है। हमने बोला कि जो बंगाली पीपल है, हमारा बंगाली स्टूडेंट्स भी है, उसको पहले बोल देते हैं परिवेश अपना प्रकृति ना, दैट मींस एनवायरमेंट, परिवेश आपका है, प्रकृति आपका नहीं है। ये एनवायरमेंट आपका है, नेचर आपका नहीं है। ये कैप्शन हमने बनाए। और जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो हम जब गिफ्ट देते हैं तो ऐसे हम 50 और 1 को बैग बना लेंगे कैनवास कपड़ का, और उसके ऊपर ये कैप्शन हमने लगाए। जब हम उसको ये बैग गिफ्ट करते हैं और कुछ गिफ्ट करते हैं, तो हम ये बैग उसको गिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक डिफरेंट थॉट होता है। इससे क्या होता है, जब वो बैग लेके रास्ते से जाएगा तो और 2 पीपल देखेगा उसके बैग में क्या लिखा है, ओ उसका एनवायरमेंटल कुछ बातें लिखा है। हाँ, ये इसमें तो लॉजिक है इस बातें का। ये तो हमको सोचना चाहिए कि एनवायरमेंट आपका एनवायरमेंट हो सकता है, लेकिन नेचर कैसे आपका हो सकता है? वो नेचर का है, वो आपका नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कैप्शंस दैट आई वुड लाइक टू शेयर in front of our students। फिर और एक एक्टिविटी सस्टेनेबल डेवलप का हम दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं लोकल पीपल के साथ कि कोई भी अगर किसी भी फैमिली का जो गुजर गया है, उसका नाम पे हम एक आइलैंड है हमारे यहाँ पे कुलिक रिवर के साइड में, तो वहां पे हम ग्रीन विलेज बनाना चाहते हैं। उसका ग्रीन है, लेकिन उसका ग्रीन का जो रेट है हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? हम लोग सोचा कि इसका जो इस घर का एंसेस्टर का जो गुजर गया है, वो उसके लोगों के पास रिस्पेक्टेबल है। अगर उसके नाम पे हम एक पेड़ उसके घर में जाके उसको लगा के आएंगे, तो क्या होता है, वो सेंटिमेंट काम करता है। तो वी हैव टू यूज द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल एंड हैव टू अटैच दैट सेंटिमेंट विद द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। तो हमने क्या किया, इंसान का जो सेंटिमेंट होता है उसके एंसेस्टर के ऊपर, उसके साथ हमने एनवायरमेंट को अटैच करके ग्रीन विलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यहाँ पे हम लोग हमारे एक एनजीओ के साथ। तो ये भी एक सस्टेनेबल थिंकिंग का काम है। अभी आप किसी भी शादी पे जाओ, मैरिज पार्टी में जाओ, आप लोग क्या देखते हैं वहां पे? आप लोग जाके देखते हैं इतना इतना प्लास्टिक बोतल देने से, अरे भाई एक बोतल दे दो, एक बोतल लेके हम लोग पानी पीते उसको फेंक देते। सब पानी हम लोग नहीं पीते, हर बोतल में इतना इतना पानी रह जाता है। तो मैं अपने खुद के शादी में हमने क्या किया था कि इसको छोड़ो, हम पूरा मिट्टी का जो बर्तन है उसको लाएंगे, और जो उसका मेन्यू कार्ड है, हम उस मेन्यू कार्ड को हम किसी कागज में उसको यूज नहीं करेंगे, उसमें भी तो एक कागज खर्चा होता है। तो एक हम जो जग लाया ये मिट्टी का है, उसी के बॉडी में हमने उसका मेन्यू कार्ड लिख दिया। ये बंगाली में है, आपको समझ में, जो बंगाली पीपल है उसको समझ में आएगा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज हम सबको करना है, जिससे क्या किसी भी हम ओजोन डे, जब ओजोन डे पे हमारे एक दोस्त का बर्थडे हुआ था, तो हमने सोचा कि उसको एक इंडोर एक प्लांट देते हैं, जिस प्लांट के उसको नाम दे देते हैं, उसका नाम हमने दे दिया ओजोन ट्री। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंसान का दिमाग में आ जाता है कि ओ ये ओजोन ट्री इसका नाम दिया, क्यों दिया, ओजोन ट्री का क्या होता है। फिर जब वो जानने चाहेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसको समझ में आएगा कि ओ ये ओजोन अभी डिप्लेशन हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अगर ये खत्म होगा, ये नष्ट होगा, तो क्या होगा, ओजोन होल हो जाएगा तो क्या होगा, इंसान का कैंसर होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे ही एक्टिविटीज करना है हम लोगों को। मैं अपने फेसबुक में जो कवर पेज है उसमें भी मैंने क्लाइमेट की एक्टिविटीज रखा है। मैंने वहां पे रखा है वोट फॉर क्लाइमेट। हम लोग जब पॉलिटिशियन को वोट देंगे, पहले उसको जाके हमको पूछना चाहिए, भाई इफ यू आर गेटिंग द पोजीशन एज ए काउंसिलर, एज ए लीडर, एज ए एमएलए, देन व्हाट यू विल डू फॉर आवर क्लाइमेट। क्या करेंगे आप एनवायरमेंट के लिए क्या काम करेंगे, वो आपका फंडा बताइए पहले। इसलिए हम लोगों का अभी क्लाइमेट लीडर्स को कुछ ढूंढना है। वोट फॉर लीडर्स हु विल फाइट फॉर क्लाइमेट, ये हमने लिखा है। वी नीड क्लाइमेट लीडर। हमने ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके छोटा छोटा इंडोर प्लांट बना के अपने ऑफिस पे रखते हैं, और उसका जो टैब होता है उसमें हम ऐसे ही कैप्शंस लिखते हैं, क्योंकि ये देखने से इंसान का थोड़ा सा दिमाग में चेंज होता है। चाशी उत्सव, आई हैव स्टार्टेड अनदर फेस्टिवल, दैट इज फार्मर फेस्टिवल। हम लोगों को फार्मर को थोड़ा प्रेस्टीज देना है। अगर फार्मर को हम बोलेंगे कि आप बायो फार्मिंग करो, तो सब फार्मर तो नहीं करेंगे। तो उसको आपको समझाना है कि बायो फार्मिंग करने से क्या होगा और नॉन बायो फार्मिंग करने से, पेस्टिसाइड यूज करने से क्या होगा। उसका लैंड का जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा 3-4 साल बाद, उसको पहले उसको समझाना है। हम लोगों को टीचर्स को समझाना है
या हम लोग जाके सिर्फ क्लास में पढ़ाते हैं और बाद में की टाइम हम अपने घर में दे देते हैं। अरे ये घर हमारा आर्ट है, हमारा घर सिर्फ हमारा वो बीवी बच्चा माँ बाप ये नहीं होता है, ये सब फिलोसफी जनरेट करना पड़ेगा हम लोगों को, बोलना पड़ेगा आपको साहस सिखाते के साथ। अनदर एक्टिविटीज व्हिच आई एम डूइंग हियर कि जो पंचभूत है, जब हम पंचभूत उत्सव करते हैं इधर, एक पुलिस स्टेशन में हम गए थे कि वो उसमें इंडिजिनस था, वो इंडिजिनस ट्राइबल कुछ डे था, तो उसमें हम एक पुलिस थाना का जितने सारे ट्राइबल पुलिस है, ट्राइबल पुलिस जो लोग है उन लोगों को हमने जाके पंचभूत गिफ्ट दिया। तो ये पंचभूत गिफ्ट कैसा होता है कि हमने उसको 5 फल दिया। आप लोगों को तो मालूम है पूजा में भी 5 फल यूज होता है हर पूजा में, तो व्रत में, तो 5 फल हमने उसको गिफ्ट किया और 5 फल का 5 नाम दिया फ्रूट्स का। क्या नाम दिया? एक फ्रूट का नाम दिया खीती, एक का नाम दिया और, एक का नाम दिया तेज, एक का नाम दिया मुरुत, एक का नाम दिया बोम। तो क्या होता है, उसको 5 फ्रूट्स हमने गिफ्ट किया, लेकिन 5 फ्रूट के साथ हमने पंचभूत को भी उसके सामने हाजिर किया। इससे क्या होता है, उसका दिमाग में इसका काम करेगा। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं इधर, अभी हमारा 62, तब वहां पे जाके हम कोई भी गिफ्ट देते हैं, लेकिन उसके साथ उसको विवाह वृक्ष देते हैं। ये बंगाली में लिखा है और आप देखिए ये बंगाली में हमने इसको कैसे लिखा, इसको जो लिखा है, इसको जो प्रिपेयर किया है, इसमें भी एनवायरमेंटल थॉट्स है कि उसका जो शादी में जो यूज होता है या वृक्ष को लगाया उसमें एक अल्फाबेट के हिसाब से। तो ऐसे ही हम जहां पर भी जाते हैं विवाह वृक्ष देते हैं। इससे क्या होता है, इसके साथ भी हम सेंटिमेंट के साथ एनवायरमेंट को जुड़ाते हैं कि जो ग्रूम होता है, ब्राइड होता है, वो लोग वो वृक्ष को ऐसे खत्म नहीं होने देगा, नष्ट होने नहीं देगा। तो उसको दिमाग में आता है ये वृक्ष के साथ हमारा शादी का दिन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही सेंटिमेंट उसको काम करेगा। तो नाउ इफ वी आर अप्लाइंग द ह्यूमन सेंटिमेंट to preserve our environment of trees, that would be good for our nature. That can be an example of sustainable thinking. So another example, जब ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका एग्जाम्पल के, अभी 62 ऐसे शादी में हम गया है तो 62 विवाह वृक्ष दिया है। देखिए कितने सारे विवाह वृक्ष, इसका प्रोजेक्ट भी हमने ही बनाए थे। तो कितने सारे विवाह वृक्ष एक साथ, एक का शादी हो रहा है, वो जितने भी गेस्ट आएगा सबको एक एक करके वृक्ष वो गिफ्ट करेगा। तो ये भी एक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है। तो मैंने जब ऐसे काम किया तो मेरे देखते देखते से मेरा जो फ्रेंड्स लोग है वो ने बोला कि मैं अपने शादी में जो भी कोई भी आएगा उसको हम विवाह वृक्ष गिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये भी एक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है, ये भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम तो करेगा, सस्टेनेबल थिंकिंग तो जनरेट करेगा। जब मैं उड़ीसा में गया, आप लोगों को यहाँ पे एक हमारे ऑनरेबल एक गेस्ट स्पीकर ने वो सैनिटेशन के बारे में बोला। देखिए ये भी एक एनवायरमेंटल काम है कि स्वच्छ भारत हर इंडिया में 100% सक्सेसफुल है, ऐसे गवर्नमेंट जगह बोलता है, लेकिन स्वच्छ भारत के ऊपर प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, 10 लाख का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उस पर काम है कि 4 स्टेट का एक्चुअल सैनिटेशन टॉयलेट कितना है उसको ढूंढ के निकालना है मुझे। तो मैंने उड़ीसा में गया, जाने के बाद first type of evidences I got this type of experience actually कि ये लैट्रिन है और सुनिए आप, मेरे ख्याल से प्रोफेसर तपस सर वीडियो का ऑडियो नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं आ रहा है। हाँ ऑडियो थोड़ा आप दे दीजिए। ओके मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने यही बोला कि हमारे इंडिया में जो लेडीज लोग है, वुमेन लोग है, ये लोग जब इस टाइप का टॉयलेट यूज करता है जिसका गेट नहीं है, जिसका रूफ नहीं है। आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो आप देखते हो कि गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो वेलबींग का ये कैसे एग्जांपल है, कैसे वेलबींग होगा जहाँ पे स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट 100% सक्सेस हो गया है, ऐसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड बोलता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे एक नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक नहीं है।
ये सिर्फ हमने एक आपको दिखाया, उसको वीडियो इसलिए हमने दिखाया कि हो सकता है कि कोई बोल सकते कि आप तो झूठे बात बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, ये झूठे बात नहीं है, ये रियल एग्जाम्पल है। दैट मीन्स स्वच्छ भारत इज नॉट इम्प्लीमेंटेड 100%, ये हमने प्रूव किया। तो हम और भी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। अगर आपका टाइम कम होगा तो हम बोल देंगे सर, हम वहीं पर भी स्टॉप कर देंगे। देखिए अनदर एक्टिविटीज, जितने सारे पीएचडी हमारे अंडर होता है, अराउंड 10 पीएचडी कंप्लीटेड अंडर माय सुपरविजन। बात ये नहीं कि 10 हुआ है, बात ये है कि अगर एक पीएचडी हमारे पास कंप्लीट होगा तो हम रिसर्च स्कॉलर को ऐसे नहीं छोड़ते। तुम पीएचडी सबमिशन करना चाहते हो, ठीक है, तुमको एक काम करना होगा। तो स्टूडेंट्स बोलता है कि क्या काम करना होगा? तुमको हमारे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे ऑफिशियली एक लेटर लिख के और रियली आपको एक गाछ, एक पेड़ आपको लगाना है विद दिस बैनर कि 1 PhD सबमिशन इज इक्वल टू 1 ट्री प्लांटेशन। तो सोचिए ना, एक छोटा छोटा काम हम करवा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स लोगों को, हमारे रिसर्च लोगों को। क्या इससे सस्टेनेबल थिंकिंग जनरेट नहीं होगा? क्या कोई नहीं चाहेगा कि हमारे डे ऑफ सबमिशन पे, अरे ये पेड़ आप देख रहे हो ना, ये पेड़ हमारे जब पीएचडी अवार्ड हुए थे ना, उस दिन इस पेड़ को हमने लगाए, देखो कितना बड़ा हो गया। यही सेंटीमेंट सेंटीमेंट के साथ एनवायरमेंट को हम लोगों को जुड़ना है, तो बहुत इजी हो जाएगा वो पेड़ को लगाने। और आप लोग बोल सकते हो कि इसको बाद में कौन दिखता है? ये हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, हम लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट्स है। तुम इधर आए, जाओ थोड़ा सा पानी लेके आओ उस पेड़ पे, और उसको हम लोग अच्छे से बाउंड भी करते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ लगा के चल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको और एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे जितने भी क्लोज हमारे जो रिलेटिव्स है, जब भी हमको इन्वाइट करता है, हम उसके घर में जब जाते हैं, फर्स्ट राइस सेरेमनी आप लोगों को तो मालूम है, तब उन लोगों को, बच्चे लोगों का जो फर्स्ट राइस सेरेमनी होता है, हम उसके नाम पे जो बड़ वृक्ष है, पाखू वृक्ष है, हम लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट राइस सेरेमनी का एक इंसिडेंट है हमारा। जो लास्ट आपने फोटोग्राफ देखा, लास्ट आपने फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पंजाबी पहन के एक हमारे सामने एक रेड कलर का एक बंदा बैठा है, वो हमारा फर्स्ट पीएचडी रिसर्च स्कॉलर था। और उसके बाद ये सेकंड देखिए, यहाँ पे भी आप रेड कलर का वही बंदा इधर बैठा है, उसी का बच्चा है, ये 2 जुड़वा बच्चा है। तो बात ऐसा है कि आपको चेन ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज भी प्रिपेयर करना है। उसको पिताजी का पीएचडी सबमिशन का हमने उसको बोला कि तुमको पेड़ लगाना है। फिर उसने बोला कि जब हमारे बच्चे का जो फर्स्ट राइस सेरेमनी होगा, तब तुमको आके पेड़ लगाना है। तो ये क्या होता है, चेन ऑफ एनवायरमेंटल थॉट्स क्रिएट हो जाता है कि हमने उसको सिखाया, वो उसको सिखाएगा, फिर उसके बच्चे और किसी को सिखाएगा। ऐसे चेन ऑफ एनवायरमेंटल थॉट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करना है हम लोगों को। काम करता है सर, काम करता है। टीचर्स डे, सभी हमारा जितना जो स्टूडेंट्स है, जो हमको बहुत मानते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हमको मानते हैं, हमको पूछता है, तो वो बोलता है कि सर टीचर्स डे है, आपको क्या गिफ्ट करूं? तो हमने बोला कि आप लोग तो सब बाहर हो, और गिफ्ट लेने से हमको क्या फायदा, हम क्या गिफ्ट लेंगे, हमारे पास गॉड ने हमको सब कुछ दिया है। तो हम बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अगर तुम टीचर्स डे में हमको रेस्पेक्ट देना चाहते हो, तो तुम जहां पर भी हो वहीं पे तुम हमारे नाम पे एक पेड़ लगाओ। देखिए उस स्कॉलर को भी इस दिमाग में आएगा, अरे सर के नाम पे एक पेड़ लगाएंगे तो ये अच्छा रिलेशन भी बनता है। सर स्टूडेंट लोग तो काम करता है, टीचर्स के लिए एक अच्छा भी रिलेशन बनता है और एनवायरमेंटल रिलेशन भी बनता है। तो एक अच्छा बॉन्डिंग बनता है गुरु और शिष्य में। और इसके साथ देखिए हम एक एनवायरमेंटल बॉन्डिंग भी बना दिए। ये एक दार्जिलिंग हिल का एक रिसर्च स्कॉलर है हमारा, प्रभाकर इसका नाम। ये हर साल टीचर्स डे में एक एक गाछ लगाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये लगा के चले जाता है, ऐसा नहीं, ये अपना खुद का जो जमीन है, खुद का जो रेस्टोरेंट है, उसी का बाउंड्री में ये लगाया और उसको वो ऐसे नरिश करता है। हमने खुद एक साल बाद जाके उसको देखा है कि तुम लगाए, तुम दिखाओ तो हमको वो गाछ किधर है। नहीं नहीं दादा ये है, एकदम ठीक है, यही है। फिर हमने देखा कि किसी का मेमोरी है, उसको उसके मेमोरी के हिसाब से हम एक मेमोरी चीज भी लगा सकते हैं। मतलब हर कहीं पे भी। और एक काम, आपको एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनना है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पेड़ ही लगाए, हमको वाटर के बारे में भी सोचना है। वाटर के बारे में सोचना है। हम अपने लोकेलिटी में जब देखे कि ऐसे ही पाइप खोल के पड़ा हुआ है, तब हम अपना वाइफ जा रहे थे उस रास्ते में, तो हमने बोला कि थोड़ा सा रुको, कि ऐसे फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है, क्या कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमने बोला तुम रुको, हम खुद ही इसको ट्राई करते। तो हमने
किसी एक पेड़ का कुछ लेके वो जिसका जो मुख था उसका मुंह को बंद कर दिया। तो हमने उस फोटो को भी रखा। क्यों रखा? ऐसे नहीं कि आपको दिखाने के लिए हम इतना बड़ा काम करते हैं। भाई हम तो इतना बड़ा काम कर नहीं सकते। हम कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं बन सकते, लेकिन हम अपना ये छोटा सा फोटोग्राफ सोशल मीडिया में डालने से मेरे ये काम देख के और 2 लोग काम करेगा। आपको मालूम है, एक दिन के बाद, सिर्फ एक दिन के बाद फिर से हम उस रास्ते पे आए, हम और अपना वाइफ फिर उसी रास्ते पे आए। हमने देखा कि कोई आके, और मुझे मालूम नहीं कौन किया, हमने सोशल मीडिया में डाल दिया। हो सकता है कि म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी, हमारा दोस्त, वो सब तो होता ही है फेसबुक में, उसने देखा है तो उसमें एक लोहा का एक नॉल लगा के चला गया। तो हमको देख के इतना अच्छा महसूस हुआ कि लास्ट डे मैंने जो थोड़ा सा काम किया उसके हिसाब से कोई तो बंदा लगा के ये गया है कि पानी नहीं पड़ रहा है। तो यही आपका काम है। अगर आप सस्टेनेबल थिंकिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद उस थिंकिंग को वर्क में कन्वर्ट कर, सस्टेनेबल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल वर्क आपके एरिया में सस्टेनेबल प्लानिंग ला सकता है। तो ऐसे इंडिजिनस राइट कल्टीवेशन, ये भी मेरे रिसर्च स्कॉलर है, तो ये रिसर्च का काम ही कर रहा है इंडिजिनस राइट कल्टीवेशन के ऊपर। तो इसका ये बंदा हमारे पास पीएचडी कर रहा है, लेकिन ये टोटल इस उत्तर दिनाजपुर एरिया डिस्ट्रिक्ट में टोटली बायो फार्मिंग कर रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, टोटली बायो प्रोडक्शन हाउस कर रहा है। तो किसी जमीन में ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहा है। तो हम इसके साथ जाते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होता है, देखिए ये फोटोग्राफ भी आपका माइंड में काम करेगा, स्टूडेंट लोगों के माइंड में, एकेडमिशियन लोगों के माइंड में काम करेगा। वो प्रोफेसर लोग सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो जमीन में जाकर थोड़ा काम कर रहा है। थोड़ा सा काम हमने किया सर, लेकिन वो थोड़ा सा काम ही किसी का दिमाग में, ये तो ये रिसर्च स्कॉलर है, देखिए स्कूल का टीचर है और ये पीएचडी कर भी रहा है इसी के ऊपर। दूसरा स्कॉलर सोचेगा अरे रिसर्च स्कॉलर होकर देखो कितना डाउन टू अर्थ काम तो कर रहा है, रियल काम तो कर रहा है। तो क्या होता है, इससे सस्टेनेबल माइंड प्रिपेयर होता है, इससे सस्टेनेबल थिंकिंग जनरेट होता है। तो हमने ऐसे कैप्शन भी हमने अपने ऑफिस में लिख के रखा है, रिड्यूस ह्यूमन कॉरिडोर, इंक्रीज एनिमल कॉरिडोर। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला कि I have completed, I have covered more than 6,066 kilometers, and to cover this kilometer, I spent total 37 days in my life. मैं 37 days टोटल ये बाइक लेके ऐसे पूरा हमारा लगेज लेके, कैमरा लेके, खाता पेंसिल लेके हमने पूरा बंगाल सफर किया। और हमारा बाइक का नाम भी है ऐसे, हमारा बाइक का बंगाली का लिखा है, इसका नाम है गवेषणा और बांग्ला सफर, मतलब रिसर्च एंड बंगाल सफर टूर। तो हमने इस बाइक का नाम भी ऐसे इसलिए दिया कि जितने सारे लोग अभी पीएचडी करता है, इन लोगों, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू विजिट द फील्ड। वो लोग फील्ड में जाना नहीं चाहता है, वो सेकेंडरी डेटा लेके इधर उधर से डेटा कलेक्शन करके वो दे जस्ट वांट टू अटैच द डॉक्टरेट एज ए सफिक्स, नाम के सामने डॉक्टरेट रखना चाहते हैं। भाई ऐसे तो काम हमारे पास तो नहीं होगा कि नाम के पास डॉक्टरेट आप लगाओगे और उसके लिए रिसर्च करने आप हमारे पास आओगी। तो एक मैसेज तो जाता है स्टूडेंट्स लोगों के पास, लोकल पीपल को, नहीं वो प्रोफेसर लोग बहुत काम कराएगा, वो फील्ड में भेजेगा, ऐसे काम करना होगा, रियल काम करना होगा। ये भी तो सोसाइटी में सस्टेनेबल रिसर्च हो रहा है, सस्टेनेबल रिसर्च के बीच का जो रास्ता है वो खुल रहा है। मैं आपके सामने और एक दिखा रहा हूँ, I have already started another project। हम जब रास्ते में जाते हैं, हम देखा बहुत सारे ऐसे पुराना घर होता है, वॉल होता है, या कहीं पे भी रास्ते में आपको छोटा छोटा पाकुर, बैनियन ट्री, पाकुर ट्री, बॉट ट्री ऐसे मिलेगा जो रास्ते के साइड में हो जाता है। वर्ल्ड में तो वो अच्छे से नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, हम और हमारे रिसर्च स्कॉलर एक टीम है, हम लोग जाके हर महीना वैसे पाकुर और बनियान ट्री को उसको उठाते हैं, अच्छे से संभल के उठाते हैं। फिर जाके हम लोग जो हमारा रिवर पुलिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके साइड में जाके हम लोग स्टूडेंट्स लोग एक बार जाके 20-30 करके लगाते हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट लिया, ये वो डे 1 था हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने 15 ऐसा बनियान ट्री जो रास्ते में इधर उधर मतलब हो जाता है, लेकिन वो तो फाइनली नहीं होता है वहां पे, उसको उठा के प्रॉपर प्लेस में हम लोग लगाते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा काम तो होता है। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे यूनिवर्सिटी का ऑफिस रूम है। देखिए सस्टेनेबल थिंकिंग का जो मैंने मतलब बोला है, उसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपको पेड़ लगाना का मतलब सस्टेनेबल थिंकिंग है। सस्टेनेबल गोल्स जो होता है उसमें
17 डिफरेंट सस्टेनेबल गोल होता है, जहां पे आपको एक सस्टेनेबल माइंड जनरेट करना पड़ता है। तो जब भी कोई हमारे ऑफिस में आता है, वो सब लोग ऐसे 17 डिफरेंट गोल उसको मतलब आंखों के सामने आता ही है। और जितने भी सारे हम ऐसे किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं, तो ऐसे कैनवस का पर थोड़ा हम बैग बनाते हैं, उसके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एक फोटोग्राफ में आपको मिलेगा कि एक बैग के ऊपर ये लिखा है। तो जब मैं ये बैग किसी को देता हूँ, या जो सेमिनार होता है, सेमिनार में हमने ऐसा 250 बैग बनाए थे। तो हम प्लीज हेलो कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। कंटिन्यू ओके। अगर किसी को सर प्रॉब्लम होगा तो स्टॉप कर देना सर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी का काम होगा, लेकिन मैं ये थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर कर लेंगे तो अच्छा होगा। अभी आ गए, अब 10-15 साल होता है, खत्म कर देंगे। तो इस टाइप का हम लोग बैग प्रिपेयर करते हैं। अगर 100 बैग हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का, जो सेमिनार का रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, वहां पे सब लोग किट्स लेने आता है। तो अगर 100 बैग्स हमने किसी को 100 लोगों में दिया और 100 लोगों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 का मैसेज गया, तो आप सोचिए तो कितना कितना स्मूथ होगा इंसान का जो थिंकिंग है, थिंकिंग को आपको कन्वर्ट करने में। सबका नहीं होगा, एक का तो होगा। तो एक आदमी दुनिया हिला सकता है, बहुत कुछ कर सकता है एक आदमी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैं साउथ कोरिया में गया था, जेजू आइलैंड, देखिए ये सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में जब हम लोग जाते हैं, वहां पे सेमिनार किट्स लगा लेते हैं, थोड़ा सा लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद साइड पीछे वाला जो गेट होता है उस साइड से हम लोग भाग जाते हैं, और फिर जब खत्म होता है उस साइड से आके बैठ जाता है। सब लोग नहीं करता है, लेकिन 20% लोग तो करता है। ये मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। मैंने खुद के लाइफ में 92 डिफरेंट सेमिनार सबने अटेंड किया है। तो कोई बोल सकते हैं कि सर आप ये कैसे बातें बोल रहे हो, हम तो ऐसे नहीं करते। हमने आपको नहीं बोला, हम 20% लोगों के बारे में बोला। जॉइन ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, based on my participation in 92 different seminars in 7 different countries, not in my country India. ऐसे सब देश में जाके हमने देखा ऐसे काम थोड़ा बंदा लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये थोड़ा मिनिमाइज करना है। तो क्या होता है, जब मैंने जेजू आइलैंड पे गया था, यूनाइटेड नेशंस का ही फंड में गया था यहाँ पे मैंने, तो वहां पे जाके हमने देखा कि सिर्फ आपको सेमिनार वगैरह में लेक्चर देना है या सुन के बातें सुनना है, ऐसा नहीं होगा। लास्ट दिन जो होता है, द लास्ट डे में आपको जाके खुद के हाथ से मिट्टी लगा के आपको पेड़ लगाना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सेमिनार हो रहा है, सिर्फ हम लोग सेमिनार में खाएंगे, बातें करेंगे, इसके बाद भी तो हम लोग कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज भी तो करना है। So I got this type of experience during my visit at Jeju Island of South Korea. छोटा सा द्वीप है, छोटा सा आइलैंड है ये। तो मैंने देखा वहाँ का लोग कैसे, देखिए चीज को रीयूज करते हैं। आप देखिए, आपको मालूम हो जाएगा, मैंने फोटोग्राफ में दिया है कैसे कितना अच्छे से रीयूज करता है। और जब मैं साउथ सुराभाया इंडोनेशिया, राइट, इस जगह सुराभाया में मरगाराजो विलेज में गया। मरगाराजो सोआ, ये इंडोनेशिया का सुराभाया का एक विलेज है। आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे जाके। मैंने सस्टेनेबल थिंकिंग का नॉलेज लिया, हाउ आई हैव जनरेटेड दिस टाइप ऑफ सस्टेनेबल थिंकिंग concept, the concept of sustainable thinking. At first I got the experiences from different countries. मैंने जब इंडोनेशिया का सुराभाया में गया, इस जगह में, तो मैंने जाके देखा कि एक विलेज है, जिस विलेज में हर कोई सॉलिड वेस्ट का रीयूज करता है। तो अगर एक छोटा सा, और वही देखने के लिए टूरिस्ट पीपल बाहर से आता है, सोचिए कितना अच्छा है। वो सॉलिड वेस्ट का रीयूज कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है, और वो देखने के लिए, विलेज को देखने के लिए बाहर से लोग आता है। जब बाहर से लोग आता है, तब उस विलेज का हर जो कोटियर होता है वहां पे वो लोग सेल करता है, रीयूज का जो आइटम वो प्रिपेयर करता है वो सेल करता है, और वो टूरिस्ट पीपल को खरीदता भी है। इससे उन लोगों का थोड़ा सा इनकम भी होता है, और एक सस्टेनेबल थिंकिंग का जो इम्प्रिंट है वो भी देता है। इसके बाद जो मेरा पीएचडी, मैंने अपार्ट फ्रॉम जियोग्राफी आई हैव आल्सो कंप्लीटेड अनदर पीएचडी इन एजुकेशन। तो मैंने सोचा कि डिग्री के लिए काम पे काम करना है। तो जब उसको रिसर्च टॉपिक मैंने लिया, तो ऐसे टॉपिक लिया, एनवायरमेंटल फिल्म्स एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक कंसंट्रेशन। तो मैंने सोचा कि अभी जो एनसीईआरटी है, एनसीटी है, तो ये जो है, ये लोग बीएड एजुकेशन में या एमएड एजुकेशन पे
डिग्री पे कोर्स के जो करिकुलम है उसके साथ दिस टाइप ऑफ करिकुलम दे हैव ऑलरेडी एडेड। तो क्या होता है, जो हम लोग जियोग्राफी का हम लोग स्टूडेंट से, स्कॉलर है, टीचर से, हम लोग को सिलेबस में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटरी एनवायरमेंटल फिल्म्स को उसमें ऐड करना है। अगर हम लोग डॉक्यूमेंटरी ऐसे एनवायरमेंटल फिल्म्स को उसमें ऐड कर सकते हैं और उसी को असाइनमेंट दे सकते हैं कि तुम ये 5 एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंटरी फिल्म तुमको रिव्यू करना है और उसके ऊपर तुमको ये असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। इससे क्या होता है, उसको मार्क्स भी मिलेगा, उसमें एक एस्थेटिक एनवायरमेंटल थॉट जनरेट होगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि ऐसे 43 डिफरेंट एनवायरमेंटल जो डॉक्यूमेंटरी फिल्म्स है हमने उसको चूज किया और ये 43 डिफरेंट एनवायरमेंटल फिल्म्स पे कैसे एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जनरेट होता है। आफ्टर वाचिंग दिस 43 डिफरेंट एनवायरमेंटल फिल्म्स, how the environmental consciousness is generating among the mind of the people, तो ये भी हमने जज किया। इससे काम तो होता है सर। तो आपको ये छोटे छोटे चीज जो होता है, तो इसी के हिसाब से हमने ऐसे एनवायरमेंटल फिल्म डायनामिक्स कॉन्सेप्ट जनरेट किया। ये हमारे अभी इसमें रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैंने दिखाया आपको। तो उसका थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ आपका ये एनवायरमेंटल फिल्म्स का क्या कनेक्शन है, कोई मुझे पूछ भी सकता है। तो कनेक्शन है ना। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन आप सोचेंगे, तो अगर गॉडजिला वर्सेस द स्मॉक मॉन्स्टर आप फिल्म देखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ये क्लाइमेट एक्शन के बारे में आपके अंदर काम करेगा। डे आफ्टर टुमारो आप देखेंगे, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 याद आ सकता है। अगर आप क्रूड नाम का फिल्म एनवायरमेंटल फिल्म देखेंगे, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 दैट मींस इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर याद होगा। अगर आप आर्ट फिल्म देखेंगे, ऐसे ही कुछ लिस्ट भी हमने दिया है, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे एक बात हो रहा था कि यहाँ पे एक डेलीगेट सर ने बोला था कि एनवायरमेंटल जो टीचिंग लर्निंग है वो हम लोग ठीक से मतलब प्रॉपरली हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली एनवायरमेंटल एक्टिविटीज काम हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हम सर आपको भी सपोर्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जब मैंने मेघालय पे गया था, वहाँ पे माउलालोंग नाम का एक विलेज है, वो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है माउलालोंग। तो माउलालोंग विलेज में मैंने स्कूल में घुसा था सर्वे के लिए। तो उस स्कूल का जो किताब है, एनवायरमेंटल बुक्स का जो किताब है, उससे बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं उसका हमने फोटोग्राफ लाया। देखिए बच्चे लोग और उसका टीचर, क्यों एक विलेज एशिया का क्लीनेस्ट विलेज हो गया है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट जस्ट studied the environmental study paper as a paper, but they are applying environmental, they are reading, they are learning the applied environmental studies. तो उन लोगों का जो एनवायरमेंटल का किताब है, देखिए टीचर लोग उन लोग कब कब पढ़ाते हैं उसका डेट देख सकते हो। 18/6/2014 का एक डेटा भी वहां पे लिखा भी है, आप लोग देख सकते हो। और कितना अच्छे से उन लोगों को उसका मीनिंग, उसका जो स्पेलिंग, उसका मीनिंग जो बच्चे लोगों को आस्किंग करता है ना कि सर इसका मीनिंग क्या है, इससे इतना अच्छे से अगर टीचर्स एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाएंगे तभी ना उस विलेज का बच्चा हर शुक्रवार सैटरडे को पूरा विलेज साफ करता है, हर स्टूडेंट्स। आपको हमने डेटा दिया, इसके ऊपर हमारा किताब है माउलालोंग द सेक्रेट द एशियन क्लीनेस्ट विलेज, इसका ऊपर किताब है हमारा, एक ही किताब है, आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको ऐसे। फिर मैंने ऐसे टाइप का एक फोटोग्राफ भी लिया। ये एक पॉटर का बच्चा है हमारा इधर का, उसका पिताजी का पॉटरी इंडस्ट्री है। देखिए उन लोगों का बच्चा लोग जो है वो लोग आंखों के सामने छोटे से अपने मतलब आपके आंखों के सामने जैसे एनवायरमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे एनवायरमेंट सामने लाएंगे, वैसे एनवायरमेंट आप सीखेंगे। सोशल एक्टिविस्ट के बारे में आप लोगों ने दिया है। यस, दे हैव ऑलरेडी डन द वर्क इन फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल थिंकिंग। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, माउलालोंग विलेज, दैट वाज द माउफालोंग विलेज। ये है माउलालोंग, सॉरी दैट वाज द माउलालोंग विलेज। ये भी वही माउलालोंग विलेज है जहाँ पे आपको लिविंग रूट ब्रिज मिलेगा और सस्टेनेबल कम्युनिटी मैनेजमेंट भी मिलेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे बहुत टूरिस्ट भी आता है। मतलब नेचुरल रिसोर्स, ऑफ कोर्स सस्टेनेबल थिंकिंग, दे आर नरिशिंग सस्टेनेबल थिंकिंग। ये मेरे पीएचडी का एक पार्ट था, वहां से एक फोटोग्राफ हमने लिया है। जितने सारे सेक्रेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ट्रीज हमको मिला है, हमारे पास डेटा है 2222 सेक्रेड ट्रीज का डेटा है पूरा वेस्ट बंगाल में हमारे पास है। क्योंकि हमने पीएचडी जो किया था पूरा बंगाल एकदम दार्जिलिंग से लेके पूरा एकदम जो आपका गंगा सागर है पूरा हमने बाइक लेके कवर किया था पूरा।
to just to get the data, real data of sacred trees. तो उसमें हमको 369 sacred groves भी मिला था, ऐसे जंगल भी मिला था, जो पूरा जंगल ही इंसान लोग उसको पूजा करते हैं, ऐसे भी डेटा मिला था। तो मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट किया कि आप लोगों के साइड में जितने भी सैक्रेड ग्रोव्स है, सैक्रेड ट्रीज है, उसको थोड़ा उसको सेव कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। फिर इसके बारे में भी एक सर ने बताया, तो दिस टाइप ऑफ लास्ट डे साइकिल डे गया है, लास्ट डे वर्ल्ड साइकिल डे। ये हम लोग जब स्टडी टूर में जाते हैं तो चिटकुल विलेज में हम लोगों ने गया था ऐसे ही। तो चिटकुल विलेज में 13,000 ऐसे मीटर ऊपर जाके हम लोग एक बाईसाइकिल लेके हम लोग थोड़ा सा कैंपेनिंग भी किए थे। और सारे जो स्टूडेंट्स है, इन लोगों का जो टी शर्ट है, देखिए हमने इसे प्रीवियस भी किया था कि सबका जो टी शर्ट है उसमें लिखा एक एक गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी हमने उसमें बनाया था। क्या होता है, स्टूडेंट लोगों का जो माइंड है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनरेट करने के लिए आपको ऐसे छोटा छोटा अवेयरनेस कैंपेनिंग करना पड़ेगा। फिर मैं आपको जो बोला था कि पानी को मैंने स्टोर करके उसको पहले यूज करता था घर बनाने के टाइम पे, आप देखिए वही फोटोग्राफ जो बातें मैंने बोला था उसी के साथ लिंक करके मैं फोटोग्राफ आपको दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बाल्टी है इधर, बकेट है इधर, इसमें सारे हम लोग ऐसे ही रेन वाटर इसमें सेव करते थे। हमने आपको ये भी बोला था जब हमने अमेजोन में गया था तो हमको फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे हमको ऐसे 200 मिलीमीटर का प्लास्टिक का जो पाउच है ये हमको दिया था। तो ये हमको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन हमको ये गेनिंग हुआ था कि दे आर थिंकिंग दैट इफ दे आर यूजिंग द प्लास्टिक दैट मीन्स दे आर नरिशिंग द पेस्टिस, मॉडर्न पेस्टिस। तो ऐसे मॉडर्निटी हम लोगों को नहीं चाहिए एक्चुअली। तो एक उस टाइम पे आप लोगों को ये भी मालूम था कि अमेजोन का जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, ये 2018 का बात है, तो फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो ऐसे हमने अमेजोन के अंदर 110 किलोमीटर हम अंदर गया था। उससे पूरा 6 पुलिस प्रोटेक्शन भी था गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स था, मिलिट्री फोर्स भी दिया था हम लोगों ने हमको। तो उस टाइम पे हमने इस टाइप का फॉरेस्ट जो फायर है उसको भी हमने देखा था। तो हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर पे ये जो फॉरेस्ट फायर का कॉन्सेप्ट चल रहा था उस टाइम पे, इसमें भी थोड़ा सस्टेनेबल थिंकिंग में इसका मतलब जो लैकुना था। जो फॉरेस्ट फायर होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था इंसान का। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, वो नेचुरल है। लेकिन जब ह्यूमन इंड्यूस्ड फॉरेस्ट फायर आप जनरेट करोगी, प्रॉब्लम उसमें आपका आता है। और ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स भी जुड़ा रहता है। तो बोल्सोनारो जो प्रेसिडेंट था वहां पे, तो अभी भी है बोल्सोनारो सर प्रेसिडेंट, वो एक्चुअली उनके साथ एक पॉलिटिकल फाइटिंग भी में भी ऐसे हो रहा था कुछ, लेकिन हम आपको ऐसे डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते। लेकिन लोकल पीपल तो के साथ जब हमने बातें की तो हमको ऐसे कुछ डेटा आया। मतलब पॉलिटिक्स में भी आपको सस्टेनेबल पॉलिटिक्स लाना है, ये भी लाना है। ये सब बातें हम लोगों को स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मैं आपको ये अमेजोन का कुछ फोटोग्राफ हम आपको दिखाएंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सर, 5 मिनट्स के अंदर हम खत्म कर देंगे। और थोड़ा सा है ये अमेजोन का जो पथ है जिस रास्ते से हम लोग एकदम 110 किलोमीटर अंदर गए थे। और यही सर हमने आपको बोला कि गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारे पुलिस फोर्स भी दिया था। पुलिसा बोलता है उन लोग, मिलिट्री पुलिसा बोलता है, वाटर पुलिस उन लोगों का अलग सा होता है। वाटर पुलिस, एनवायरमेंटल पुलिस, दो अलग टीम है। तो यही ब्राजील का पुलिस था, ये 3 पुलिस और भी था 2-3। तो यहाँ पे आप तीनों बंदे को आप देख सकते हो। तो गवर्नमेंट हैज गिवन दिस टाइप ऑफ फोर्स टू कंडक्ट द रिसर्च इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। मैं आपको ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के एकदम भीतर एक छोटा सा गांव भी था। तो वहां पे थोड़ा एनवायरमेंटल एक्टिविटी, सस्टेनेबल एक्टिविटीज भी होता है, वो उसका कुछ एग्जांपल हमने दिखाया आपको। ये है ये वीडियो नहीं है, इसके बाद वीडियो आएगा। ये अमेजन का एकदम अंदर का चीज, अंदर का फोटोग्राफ है, एकदम अंदर 100 ऐसे कुछ आसपास का अंदर में जब हम गया था, उसके अंदर हमने रियल वर्ल्ड देखा, रियल नेचर किसको बोलता है वो हमें आपको रियलाइज किया। जो मैं इतने सारे फॉरेस्ट गया था, मैंने ऐसे रियलाइज नहीं किया कि नेचर क्या बोलता है, नेचर हाउ यू कैन डिफाइन द नेचर। तो ये नेचर खुद ने डिफाइन किया कि वो कैसे नेचर होता है। नेचर ने खुद ने डिफाइन किया कि वो कैसे नेचर होता है। तो ये हमने पहले बार रियलाइज किया व्हेन आई spent my 14 days in Amazon rainforest area of Western Amazonia, that is Rondonia state. The largest Amazon rainforest is present in Rondonia state actually. तो मैं वहां पे आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ सबके लिए, बहुत अच्छा लगेगा, बुरा भी लगेगा। ये है इलीगल गोल्ड माइनिंग सेंटर। आप लोग जानते थे ना, वो
एल्डोराडो आपने सुना कि रिवर्स के जो बेड है, रिवर बेड से सोना मिलता है, ऐसे गोल्ड मिलता है, आप लोगों को मालूम है। तो जब किताब में पढ़ते हो वो फॉल्स नहीं है, वो ओरिजिनल है। तो ऐसे आई हैव एक्चुअली टोटल 17 डिफरेंट एग्जांपल्स, 17 एग्जांपल्स ऑफ इलीगल गोल्ड माइनिंग। ऐसे मेरे पास 17 फोटोग्राफ्स है जहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग होता है रिवर बेड के ऊपर। तो आप मुझे बोल सकते हो सर इसके साथ आपका सस्टेनेबल थिंकिंग का क्या रिलेशन है? रिलेशन है। अगर आप रिवर बेड में ऐसे टाइप का ड्रिलिंग करोगी, गोल्ड माइनिंग आप प्रिपेयर करोगी, तो उससे क्या होता है, इससे बहुत सारे टॉक्सिक जो है गोल्ड के साथ वो नीचे से ऊपर आ जाता है, और उससे क्या होता है, जो रिवर इकोलॉजी है वो रिवर इकोलॉजी हैम्पर होता है। आप इंटरनेट में सर्च करने से आपको पता चल जाएगा। ये और एक मैंने बोला था कि मेरे पास ऐसे 17 फोटोग्राफ थे जहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फोटोग्राफ समझ दिया है। ये और एक है, मैंने आपको 3 तो दिखा दिया, और एक थे 4 दिखा दिया मैंने आपको, ऐसे 4 फोटोग्राफ इलीगल गोल्ड माइनिंग, और 5 नहीं सर, 5 दिखा दिया आप लोगों को। ये कुमिया लेक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर कुमिया लेक, आप इंडिया में सर्च कर सकते हैं यार। यहाँ पे एक छोटा सा एलपी स्कूल भी है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्टेड करके रखता है। तो मैं आपको अमेजोन का थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा देखिए, अच्छा लगेगा। देखिए, मैन डज नॉट हैव द राइट टू डिस्ट्रॉय व्हाट ही कैन नॉट क्रिएट, ग्रंथ साहब ने लिखा था। ये अमेजोन का रियल पिक्चर है, आप देख सकते हो, the real Amazon rainforest. After crossing the Jamira and Madira river, which are the tributary of Amazon rainforest, Amazon river, original Amazon, original nature, मैंने आपको दिखाया original Amazon and original nature। ये लास्ट स्लाइड सर खत्म। और अभी लास्ट में आपको ये, जब मैं यूनाइटेड नेशंस गया था सर, वहीं से मैं ये फोटोग्राफ लाया था। एक साइड पे देखिए मैंने लिखा है ग्लोबल पीस, तो वहां पे देखिए आप एक बंदूक भी है, पिस्तौल भी है, उसके सामने एक जो काटा तार होता है ऐसे, उसको उसका मुंह उसको बंद कर दिया उससे। तो ये एक बहुत सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। जब आप यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूयॉर्क सिटी में जब आप उसका जो हेड ऑफिस है उसमें आप घुसेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि दिस टाइप ऑफ रेप्लिका, दिस टाइप ऑफ presentation architecture to generate the sustainable mind, to generate the sustainable thinking among the people. United Nations is trying to develop the sustainable development goals. So I personally realize that this type of architecture is helpful to reduce the cruelty, to reduce the crime in our society, and that can be the example of a photograph, as a photograph of global peace. मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि नेचर, ह्यूमन एंड हैप्पीनेस, भूटान में जब मैं गया था तो मैंने पर्सनली आई फील दैट दे आर वेरी हैप्पी। हैप्पीनेस इंडेक्स में एक टाइम तो वो लोग फर्स्ट था, अभी मुझे लगता है कि स्वीडन या नॉर्वे ऐसे कुछ हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम सब लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16, दैट इज पीस, वी हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, एंड ओवरऑल the basic motto and basic concept which is generating through this whole presentation, that is we have to follow education of responsibility. आप एजुकेशन दे रहे हो, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट सस्टेनेबल थिंकिंग, टू जनरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू जनरेट द एनवायरमेंटल माइंड। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सबको मैं प्रणाम जनाता हूँ सर। प्रोफेसर साथी सर, मैं आपको प्रणाम जनाता हूँ। डॉक्टर गुरिया सर, डॉक्टर पांडे फ्रॉम जेएनयू सर, प्रिंसिपल सर चैतन्य कॉलेज का, और जितने सारे भी मेरे ये इतने टाइम से सुना है सर, आप सबको सर नमस्कार। मेरे छात्र लोग, प्लीज फॉलो द सस्टेनेबल थिंकिंग। मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ। थैंक यू। Thank you very much, sir, for such a nice and innovative perspective of sustainable thinking. Rishabh? Sir. अरे भैया तपस जी थक गए हैं।
थोड़ा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लंबा। थैंक यू तपस पाल सर, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह, वैशाली, बिहार, पटना से। बहुत बहुत बधाई आपको। पहले वाले सुना, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव मैसेज अपना स्पीच दिया। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक फीडबैक नोट के लिए मैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर प्लीज। सिंह सर। Honorable Professor Singh, Dr. Rameshwar. हेलो। Yes sir, we can hear you. हेलो। हाँ जी सर आवाज आ रही है। जी जी जी। सबसे तो पहले मैं प्रचार्य महोदय और सारे मेरे गुरिया हमारे वो जुड़े हुए हैं सतपति साहब, सारे लोगों को बधाई देते हैं। पर्यावरण का जो बिगड़ते हुए आयाम जो देखा जा रहा है, वह सारे आज के विकास को बाधित कर रहा है। अधिक जो डेवलपमेंट हो रही है, ये भी पर्यावरण को एक तरह से डैमेज करने का कारण बना हुआ है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भले 10 बच्चे न हो, एक पेड़ लगाते हैं, उसके लिए हम सबको पर्यावरण संरक्षण न करेंगे तो पूरा विश्व समुदाय आज ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और पूरा इससे पूरा जगत एक प्रकार से हमारे जीव जंतु जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह सारे प्रभावित होंगे। इसलिए आज ये जितने भी हमारे वक्ता आए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण है अपना दिए। तपस पाल सर को आज पहले वाले मैं सुना, सर वहां से है मिजोरम से। सर का तो स्पीच अति उत्तम था। इस संदर्भ में हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण के दिवस पर संकल्प लेनी चाहिए। आप तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। पर्यावरण यदि हमारा नहीं रहता तो कोई भी जीव जंतु यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमने ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब किया। वहाँ ओजोन के छिद्रों की संख्या बढ़ रही है, उसकी आकृति बढ़ रही है, जिससे पराबैंगनी किरणें हमारे सीधे आकर हमारे त्वचा को प्रभावित करके त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां डेवलप कर रही है। इसलिए आज तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को सुना। इसके लिए बहुत बहुत प्रचार्य महोदय और नरेंद्र गुरिया साहब, सारे लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे प्रचार्य महोदय आदरणीय Thank you, सर को रिक्वेस्ट करता हूँ। जी सर। It was a really an academic feast to hear all the learned speakers. बहुत ही सामयिक और तथ्यात्मक, सारगर्भित, प्रेरणादायक जानकारी हम सबको मिली। Our life is sum of our choices. What the preferences we make, what is our attitude towards life. So similarly, the environment is a holistic problem, as our learned speakers have said. So we need a holistic approach to resolve this problem. मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भरता है। वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर एक प्रैक्टिस हम इतनी अधिक पेड़ अगर लगा दें, तो निश्चित रूप से हम बाजी जीत सकते हैं। प्लांटेशन इज आवर ऑल एनर्जी। हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। एंड आवर ऑल एनर्जी कैन बी ट्रेस्ड टू सन। तो सबकी सारी समस्याओं का उत्तर जो है प्लांटेशन में है। गरीबी, भूखमरी, ऊर्जा की कमी, सारा का सारा कुछ जस्ट प्लांटेशन is just like a bringing a new culture
planting a new culture, as Professor Paul, Professor Pandey sir has said. और सबसे रोचक बात यह है, a single man can build a forest. आपने देखा कि हर एक व्यक्ति में कितनी ज्यादा क्षमता है। तो ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है, इसकी सफलता तभी है जब when we can sensitize a global community और a group community at a larger scale, हम सब एक सामूहिक रूप से प्रयास करें और एक जो बृहद समस्या जो पर्यावरण के संकट की है, क्लाइमेट चेंज की है, बायोडायवर्सिटी के लुप्त होने की है, या प्रदूषण की समस्या है, जिससे कि हार्मोनी असंतुलित हो रही है, तो हम इंडिविजुअल स्तर पर प्रयास करें, सामूहिक स्तर पर प्रयास करें, और हमारे सारे प्रयास जो हैं हमारे इनोवेशन, लर्निंग, कोऑपरेशन और एडेप्टेशन के ऊपर बेस्ड है। एक फिराक साहब का एक शेर है, जीवन एक नियम है, ऐ मन ऐ मत भूल। जीवन एक नियम है, ऐ मन ये मत भूल। एक तारा थर्रा उठा जब तोड़ा एक फूल। So everything is, this nature is wonderful, and whatever the development is going around us, let us take it as a bio-indicators of development. We have to assimilate this. जैसे जैसे हमने, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना तो साबित कर दिया है कि हमने समझ लिया है कि असंतुलन किस कारण से है, और क्या इस संतुलन को, चाहे वो कार्बन इमिशन की बात हो, प्रोफेसर सती जी ने कहा कि भाई मिनिमम ऊर्जा का कंजम्पशन करना है, सस्टेनेबल मैकेनिज्म को अप्रोच करना है, प्लांटेशन करना है, तभी हम एक हार्मोनी, संतुलन पर्यावरण के साथ बना सकते हैं, और इसी संतुलन पर ही हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संरक्षित रहेगा। और इस कार्य के लिए हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, ये सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है नॉलेज ट्रांसफर का, लोगों को एजुकेट करने का और नॉलेज को डिसेमिनेट करने का। आप सबने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सबको मिला है, और निश्चित रूप से हम बहुत सारा कैरी होम मैसेज लेकर के जा रहे हैं, जो हम अपने छात्रों के माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए संप्रेषित करेंगे। और पुनः आप सबको महाविद्यालय की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद सर। ओके। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर महेंद्र साहू, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर महेंद्र साहू सर। Good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest, invited speakers, respected Chairman, Principal Sir, all the staff members, and my dear students. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. First of all, on behalf of the entire institution, I would like to propose hearty vote of thanks to our Chief Guest, Dr.Lalit Prakash, Pateriya sir, Honorable Vice Chancellor, Shaheed NandKumar Patel, University Raigarh. Of course, he was not here, but it is being a very proud moment for us if he could be here. I would like to say thank to our distinguished speakers, Professor V.P. Sati sir, Professor Tapas sir, Professor D.N.Pandey sir, for excellent presentations and making this seminar interesting and meaningful. I would like to express our profound gratitude to our dynamic principal, Dr. Gupta sir, for his guidance in this seminar. I would like to thank our beloved Chairman, Mr. Veerendra sir, for his kind and moral support. I would also like to convey my heartiest greeting and vote of thanks to Dr. Raveshwar Prasad Singh sir, Professor Sudesh Namgia madam, Dr. Sridhar Shah, Dr. Sunita Dikshit, Dr. Sakuntala Raj, Dr. Pradeep Kumar Shah sir, for their kind presence here. I'm happy to express vote of thanks to all our staff members who have made this seminar a grand success. The on-stage events such as lectures on this topic,
the off-stage events such as paintings and slogans. I thank all the people who have participated overwhelmingly and making the event success. I would like to thank the organizing secretary, Mr. Ashok Singh Yadav, the convener, Dr. N.Guria, and co-convener, and of course my beloved Mr. Vishwavidyalaya for their great efforts. Especially Mr. Dhanesh Survanshi and group for their technical support, which of course is indistinguishable task. Finally, the wonderful students who have turned up in such a great numbers, not only from our institution, but also from institutions all around the different areas. Thank you very much for your cooperation. On the occasion of World Environment Day, it is essential for all to realize that we have an environment. And of course, we have a World Environment Day every year, which reminds to strengthen the world and to ensure that the nature is preserved at all costs. We should always remember that the gifts and blessings which nature endows on us are priceless. It is rather essential to conserve them all for a better future and life for all. Always remember that small steps will always help you to reach your goal. And the goal is to save our environment and earth. Very much thanks to all of you for being here. Thank you, sir. जी ऋषभ जी, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज का ये सेमिनार समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। पुनः आप सबके प्रति सादर आभार व्यक्त करते हुए और फिर हम जब इस तरह की कोई परिचर्चा का आयोजन करेंगे, पुनः आप सब की सहभागिता अपेक्षित रहेगी। प्रोफेसर सती, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑनलाइन नहीं अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित हुए, हम लोग ऑफलाइन में आपको आमंत्रित करने के प्रयास करेंगे। जी, आपकी सुविधा पूछ करके और जी आप सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे और एक अच्छा एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकेगा। जी गुप्ता सर को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर, बहुत आभार सर, बहुत आपने हमारा गौरव बढ़ाया। मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति को बहुत बधाई सर। चैतन्य कॉलेज को बहुत बहुत सारे टीम को बधाई। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।